Evil men hide her pride. Like a magic I'm gonna fly. I will touch the sky. Assalamu alaikum. Welcome to the second session of webinar Humse Hai Rang, paying tribute to outstanding women of Pakistan. It is organized by COPEER, Center of Pakistan and International Relations, working on research and development in diplomacy, peace, global issues like human rights and women rights. COPEER recently accomplished 2 projects in the leadership of President Amna Malik, E-Women and Digital Women. Amna Malik believes in gender equality and planning to empower women economically. Very soon, E-Women, in collaboration with Startup Insider, launching Digital Mall, where women can get virtual shops to exhibit their products. On the other hand, they're working in collaboration with Startup Insider. Startup Insider is quarterly magazine. It's aimed to inspire, educate, motivate, and celebrate the aspiring and existing business founders of Pakistan. Today, we have 5 amazing ladies with us. First of all, we have Ms. Fatima Hamid with us right now. Fatima Hamid is the founder of Fuse Araish. And Fuse Araish deals in manufacturing high-quality handmade bags, stained glass paintings, silk painting, dresses, hand-painted bed sheets. Their products are unique in design and they cannot easily copied. Welcome to the webinar, Fatma. How are you? I'm fine. What about you? I'm good. So, how did you get your idea or concept for the business, please? First of all, I am working with my mother. She belongs to a technical education. So I learned many things from my mother, and I learned technical education skills from that, from my throughout my education and throughout my life and through my childhood. So when I get growth in drawing, so I was just shocked that people want to get handmade things, but they are not in a good quality, and people don't like the local brands. So I'm very shocked that when I am working with my mother, we are making a high quality things that are unique in designs, and even they are high quality, or people trust on us that these are best. So why you are not selling it, and why you are store it at home, or why you are you use it, but why we can't use it? So I thought that I have to do something. So I start this business as I can do for everyone who want to get handmade things and in high quality things that not easy to copy and not similar designs that already available in markets, or not in a cheap quality or a poor quality. Very nice. जैसे कि अभी आपने बताया कि आप अपनी मदर के साथ काम कर रही हैं. बिल्कुल. वेरी गुड. और सबसे पहले बताएं कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी ऑब्वियसली मदर की तरफ से होगी. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यार. बिल्कुल. तो आपने इसको कब स्टार्ट किया था फ्यूज आराइश को? मैंने इसे स्टार्ट किया 2018 में. ठीक है. 2018 में. तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है? ऐसे अभी जो मैंने इसे स्टार्ट किया था, तो मुझे कुछ टाइम के लिए इसे रोकना पड़ा, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से, कुछ मेरी स्टडीज की वजह से. तो 2019 में ऐसे जिसको मैंने रीलॉन्च किया है. इससे पहले भी हम लोग ऐसे जिसे हम कह सकते हैं एग्जीबिशन होते हैं, कल्चर फेस्टिवल्स होते हैं, उस पे हम लोग अपना स्टॉल्स वगैरह बुकिंग करते थे और वहाँ पे सेल्स करते थे. जो अब मैंने रीलॉन्च किया है, तो इसमें मैंने ये प्लान किया था कि जैसे आर्टिजन हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके पास नॉलेज है, और लेकिन ऐसे जिनके पास जॉब्स नहीं है, और बेसिकली वो एक ही मतलब डिफरेंट थिंग्स नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट पेंटिंग्स कर रहे हैं, तो ऑयल पेंट्स कर रहे हैं और पेंटिंग्स बना रहे हैं, और ऐसे जिनकी कई बार ये होता है कि वो खुद स्टक हो जाते हैं कि हम आगे क्या करें. तो मेरा ये प्लान था कि जैसे अब हम लोग मेकोमा बैग्स बना रहे हैं, ठीक है, इसी तरह हम लोग बेडशीट्स बना रहे हैं जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग भी है, और इसमें हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ साथ हम लोग प्रिंट बना रहे हैं, मतलब फ्लावर्स होते हैं जो फैब्रिक पेंट से बनते हैं, तो जो कि ऐसे अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है. तो मेरा ये प्लान था कि मतलब है मेरा प्लान
कि जो आर्टिस्ट हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको ट्रेनिंग करवाई जाए, जो ऐसे मेरे पास स्किल्स हैं, जो मेरी मदर के पास स्किल्स हैं, वो सारी स्किल्स ऐसे उन आर्टिस्ट को दी जाए और उनसे उनको मतलब जॉब प्रोवाइड की जाए फ्यूचर में। मतलब वो मेरी ही ब्रांड के अकॉर्डिंग लर्निंग भी लेंगे, एक न्यू स्किल्स भी सीखेंगे, बेशक वो मेरे साथ काम करें और इन टर्म वो अपना बिजनेस भी जो है उसको ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ इनोवेशन ला सकते हैं। और इसी तरह मैंने कुछ था प्लान के, स्कूल गर्ल्स होती हैं जिनके पास ऐसा, या कॉलेज गर्ल्स हैं जिनके पास ऐसे जो स्टडीज हैं, उनके पास एक्टिविटीज नहीं है या उनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो जब ऐसे स्कूल से फारिग होती हैं या कॉलेज से फारिग होती हैं तो उनका ये प्लान होता है कि हम कुछ स्किल्स सीखें। तो ये कि अगर वो स्किल्स उनको सिखाऊं और उनको ऐसे शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग जो है शॉर्ट टर्म के लिए उनको जॉब प्रोवाइड की जाए, उनको पता है कि जो चीज़ मैं बना रही हूँ उसकी एक क्वालिटी है और उसके एक प्राइस है, और वो अर्न भी कर सकें और एक उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो, और उनको पता हो कि भी मैं बिजनेस कर सकती हूँ, अगर मैं कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, तो मैं फ्यूचर में एक बिजनेस कर सकती हूँ। तो मेरा ये है कि इसी तरह कितने हैंड टू हैंड होता है कि अगर आप एक किसी का एक का हाथ पकड़ते हैं तो आगे वो दूसरे बंदे का हाथ पकड़ेगा, तो एक चेन होती है कि जो हेल्पिंग चेन बनेगी, वो जो मुझे लगता है कि मैं मुझे करना है और इंशाल्लाह आई विल डू दैट। जैसे कोविड माशाल्लाह, की वजह वेरी से काफी कुछ रुका हुआ है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जल्दी सब कुछ लॉन्च होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं और जिसके ऊपर आप स्किल्स को पॉलिश भी कर रही हैं और उस बिल्कुल। प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपनी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है वो एग्जिबिट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ई वुमेन इन कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप इनसाइडर नवंबर में ई मॉल लॉन्च करेगा, तो आपकी जितनी बिल्कुल। भी प्रोडक्ट लाइन है और जो लोग भी आपसे एसोसिएटेड हैं इंशाल्लाह उसको हम्म, हम अपने ई मॉल पे जरूर प्लेस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है तो मुझे ये इंशाल्लाह। बताएं कि आपके पास अभी इस टाइम फुल टाइम कितने टीम मेंबर्स हैं? अभी फुल टाइम ऐसे मैंने टीम मेंबर्स नहीं है, मैंने पार्ट टाइम ही रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे जब भी आप ये समझ लें कि मुझे एक दो स्टोर्स हैं जिनके साथ मेरी डील चल रही है कि मैं उन स्टोर्स पर अपना जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोर पे रखूंगी और वैसे वहीं वहीं से सेल होगा। और ऑनलाइन से मैंने सेल स्टार्ट की है, जिसमें मैंने फेसबुक पेज और इंस्टा पेज जो अभी रीलॉन्च मतलब किया है रिसेंटली, तो उस पर मैंने कुछ सेल स्टार्ट की है कि उस पर मैं प्रोडक्ट जो है अपलोड कर रही हूँ। और ये है कि हम लोग उस पर, क्योंकि ये सारा कुछ हैंडमेड होता है, तो ये है कि इसमें मेंशन है कि जी 20 से 25 डेज के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगी, इस तरह है। बिल्कुल। तो तो अभी फुल टाइम आपके पास टीम मेंबर्स नहीं हैं, आपने नहीं, पार्ट फुल टाइम अभी। टाइम मैंने बिल्कुल पार्ट ठीक है। टाइम है। ठीक है, तो कोविड की वजह से तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया होगा आपके बिजनेस के बहुत ऊपर, उसको ज़्यादा थोड़ा सा बताएं। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा कि हमें जो प्रोडक्ट्स बनानी थी उसके लिए मटेरियल नहीं मिल रहा था, सारी स्टोर्स बंद थे और बहुत मुश्किल हुई। इवन कि कई मुझे एक टाइम पे ये स्टॉप करना पड़ा कि ठीक है अब ये सब थोड़ा जो है ओवरकम होता है ये सारी सिचुएशंस, तो फिर मुझे एक स्टॉक रखना है कि मुझे कम से कम 6 मंथ तक देखना ना पड़े मार्केट की तरफ कि भी ये चीज़ मुझे अवेलेबल नहीं है, या कोई सिचुएशन है या कि मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि आपको अब ऐसे मुझे उसको करना है, ओवरकम कैसे करना है। आपको ऑर्डर्स आ रहे थे कस्टमर्स की तरफ से? बिल्कुल ऐसे क्योंकि अभी आप ये समझ लें कि जैसे फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल्स में चल रहा था, तो ऐसे जो चीज़ें उन लोगों ने मेरे पास देखी हुई थी कि ये चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो हमें ये चीज़ चाहिए, आपने ये बनाई हुई है तो हमें बना के दें, या हैंडमेड बैग है जैसे मिक्रोमा बैग्स ऐसे मेरी वेब पे भी उस पे भी लगे हुए हैं, इंस्टा पे और फेसबुक पेज पे भी। तो ऐसे जो उस सारी के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो भी ऐसे मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये था कि सैंपल्स मैंने बनाए हुए हैं, तो उसके लिए जो अब आपको अब शो हो रहा है कि एक सैंपल है और आप उसको दोबारा बनाना चाह रहे हैं, वो आपके उसमें मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो वाला सीन चल रहा था मेरा सारा, तो फिर मैंने कहा था थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए अभी, तो इसलिए फिर उसका वेट कर रहे थे कि कैसे ये ओवरकम होती है सिचुएशन, तो जब फिर रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है जिसमें आपके पास हैंडमेड बैग्स हैं, ये सब जी आप थर्ड पार्टी से लेती हैं या आपकी प्रोडक्शन नहीं, लाइन हम कुछ अपनी खुद भी है इनमें बनाते से? हैं, हम खुद बनाते हैं। ऐसे खुद बनाते हैं? मेरी मोम बना रही हैं और ऐसे उनकी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल एजुकेशन से बिलोंग करती थी, तो ठीक। उन्होंने उनको ये है कि उनको पार्ट टाइम उनको ये किया हुआ है कि वो अगर उनको गाइड करती हैं कि इसको कैसे बनाना है, वो फिर वो उनके सामने बैठ के या उनके से वो लर्निंग ले लेती हैं कि इसको कैसे बनाना है, तो बाद में वो बना के तो बता दे देते हैं। और ऐसे इसी ठीक तरह है। हम लोगों ने जिस तरह है एक टेलर जो है उससे
जो है वो इनर जो सारा उसका स्टिच वगैरह करना होता है वो भी पार्ट टाइम है। जैसे कोई ऑर्डर आता है तो उस ऐसे जिसके हम उस टाइम उसको दे देते हैं कि ये काम करना है। क्योंकि ये हैंडमेड चीजें हैं तो हैंडमेड चीजों की क्वालिटी भी ज्यादा होती है, प्रोडक्शन भी इतनी ज्यादा बल्क में आप नहीं करते, ठीक है। तो आपको पहले ऑर्डर प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम जब अगर ई मॉल पे आपकी चीजों की प्लेसमेंट करते हैं और कभी बल्क में ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर यू कैन से कि 50 बेडशीट्स का ऑर्डर आ गया है, तो आपको कितना टाइम चाहिए इसको मैनेज करने के लिए? इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे आपको पता है कि आपके पास आपकी सारी जो चीजें हैं वो हैंडमेड हैं और आपके पास कभी भी बल्क ऑर्डर आ सकता है। तो ऐसे मैंने एक बैकअप टीम बनाई हुई है। मुझे पता है कि मुझे एक टीम चाहिए और अगर मुझे एक ऑर्डर आया कि मुझे 50 बेडशीट्स चाहिए, तो मुझे पता है एक बेडशीट अगर मैं जो है वो बना रही हूँ 2 डेज में या 3 डेज में, तो मुझे 50 जो लॉन्च करनी है या 50 जो बनानी है उसके लिए मुझे कितनी टीम चाहिए और वो मैं कितने दिन में कर सकती हूँ। ठीक है, तो अच्छा उसमें कौन सी ऐसी चीज है आपकी प्रोडक्ट लाइन में, ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है? ऐसे जो हमारे पास मिक्रोमा बैग्स हैं उसमें टाइम लगता है क्योंकि उसमें नोट टू नोट वर्क हो रहा होता है, इसलिए उस पर काफी टाइम लगता है। अब ठीक है, तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो रनिंग आइटम होता है आपकी प्रोडक्ट लाइन में, कौन सा, मतलब जिसका ऑर्डर बहुत ज्यादा है ऑनलाइन और इस तरीके से? ऐसे जब भी ऑन दी स्पॉट तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि आप अगर अपनी टारगेट मार्केट देखें तो उसमें जो सबसे ज्यादा रनिंग प्रोडक्ट है वो इस टाइम बेड शीट्स वगैरह हैं, क्योंकि वो बेडशीट है। हर घर की जरूरत है, ठीक जी है, बिल्कुल। और हर बंदा चाहता है, इट्स हर ओके, बंदा इट्स चाहता ओके, है कि इट्स उसको ओके। इफ यू आर हर वर्किंग बंदा फ्रॉम चाहता है होम कि तो इट्स उसको नॉर्मल। या ये असल में मेरे भाई का छोटा सा बेटा है और ये मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच है। तो इसका यही होता है कि जहाँ ऐसे ये मेरे फूफो नहीं कहता, आप ही कहता है, तो जहाँ आप ही है वहाँ पे ये है। जी, तो आपका अभी जो रनिंग आइटम है वो बेडशीट्स हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऑर्डर से मतलब जैसे जैसे आप कहते हैं ना कि आपकी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है, तो वो मिक्रोमा बैग्स और बेडशीट्स के हैं। और इसमें एक है सिल्क पेंटिंग ड्रेसेस हैं जो कि ऐसे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो जो डिजाइन मेरे पास अवेलेबल है उसमें से मैंने सिल्क आई थिंक तो पेंटिंग्स आपके साथ, हाँ सिल्क पेंटिंग्स हैं जिस ग्लास फॉर्म आपके में? पास। जी लास्ट वन पे आप, मैंने ख्याल से मैंने इसमें एक ही पिक ऐड की थी जो मैंने स्लाइड्स आपसे शेयर की थी, उसमें लास्ट में है वो पिक लगी हुई है। तो आप देखेंगे कि ठीक तो है, ऐसे जो डिजाइन आपको मार्केट में बहुत नहीं मिलेगा। खूबसूरत डिजाइन है जो डिस्प्ले में आपने जो किया है ना, वो बहुत खूबसूरत है। वो हैंडमेड है? बिल्कुल जी बिल्कुल। इस ऐसे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हैंडमेड नहीं है, कंप्लीट वेरी हैंडमेड है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप समझ लेंगे जिसमें कोई मशीन यूज हो रही हो, नहीं है, कुछ भी नहीं है वेरी ऐसा। नाइस। इसीलिए ना, क्योंकि अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज की, तो वहाँ हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। और अब आहिस्ता बिल्कुल आहिस्ता लोग ना हैंडमेड कपड़ा, हैंडमेड रग्स और हैंडमेड कारपेट्स इनको बहुत पसंद करते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त जो है ना, वो एक आपका आइडिया है। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास लॉयल कस्टमर्स, क्योंकि जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो किसी भी बिजनेस के लिए ब्लेसिंग होते हैं। तो आपके पास बिल्कुल। इतने टाइम में आपके वो लॉयल कस्टमर्स, ऑब्वियसली वो किस तरीके से आपने उनको मैनेज किया हुआ है और किस तरीके से आप उनको अभी तक अपने साथ ना? ऐसे आप मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे मैं दोबारा से री लॉन्च कर रही हूँ। तो ऐसे सबको जैसे पहले ही सारा सिस्टम चल रहा था, तो ये चल रहा था कि मैं मुझे सबको पता होता था कि मैंने अब आज एग्जीबिशन किया है तो कितने मंथ्स बाद या कितने वीक्स के बाद मेरा दोबारा जो है एग्जीबिशन पे स्टॉल लगने वाला है। तो वो लोग वेट करते हैं कि जी कब ये दोबारा से एग्जीबिशन हो रहा है और जब दोबारा से ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होंगी, इसीलिए अब जो है ये सारा सिस्टम चलता था। और ऐसे जिसमें कॉमन जो आप कहते हो कि आपका एक कस्टमर बार बार आता है, तो ऐसे जो ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक चीज के लिए आता है। हमारे पास बिल्कुल, ऑब्वियसली। मल्टीपल चीजें हैं और एक जगह पे अवेलेबल है, जिसमें बेडशीट्स भी हैं, उसमें बैग्स भी हैं, उसमें पेंटिंग्स भी हैं, ठीक है। और ऐसे और भी ग्राउंड पे में से आपसे सुनने कि मैंने होम डेकोर का शुरू किया है। उसमें मैंने आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरह कस्टमाइज फर्नीचर है वो ऐसे मैंने स्टार्ट किया है अपनी दोबारा से, कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और आप उसमें कुछ इनोवेशन लाना चाहते हैं कि नहीं यार मुझे ये नहीं, इसमें थोड़ा सा ये चेंज चाहिए, तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ कि मैं उसको कैसे बनाऊंगी और कैसे उसको किया जा सकता है।
वेरी नाइस। और मुझे ये बताएं कि फ्यूचर की क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर में क्या करना चाह रही हैं, किस तरह की प्रोडक्ट लाइन ऐड करेंगी, आपकी कोई फिजिकल प्रेजेंस होगी, किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करेंगी इन फ्यूचर? हाँ, अभी फिलहाल जो है मैं वो स्पेस देख रही हूँ जहाँ पे मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकूँ और अपनी जो टीम है उसे वर्किंग कंडीशन में ला सकूँ कि वो लोग, उनको पता हो कि उन लोगों ने यहाँ आना है, अपना टाइम स्पेंड करना है और काम करना है। ठीक है, तो ये कि ठीक उस है, तरह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि भाई अब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। वेरी नाइस। तो अभी जब आप इंशाल्लाह इसको फिजिकल प्रेजेंस करेंगी, मैं उसका आपका जो स्टोर है आप इसको स्टोर जी, फॉर्म में इंशाल्लाह आपका कोई अभी 6 मंथ्स में कब तक का प्लान है? जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो बेटर हो रही है, तो इंशाल्लाह और ज्यादा से ज्यादा मैं 3 और 4 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट, कि दोबारा से ये इंशाल्लाह, कोविड लॉकडाउन और कोविड वाला लॉकडाउन ना इंशाल्लाह हो तो बिल्कुल ऐसा इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हम्म, आप मैरिड हैं? नहीं, अनमैरिड हूँ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारी, आपकी एजुकेशन क्या है, कितना पढ़ा आपने? मेरी है एजुकेशन एमफिल। वेरी नाइस। क्या मैसेज देना चाहेंगी आपको जो भी हमारे ऑडियंस में देख रहे हैं, क्योंकि फीमेल और साथ फिर आप अपनी मदर के साथ काम कर रही हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट है ज्यादातर फीमेल्स को लगता है कि बस हमारी शादी हुई तो हमने बस काम नहीं करना, या बिजनेस तो हमारे बस की बात ही नहीं है। तो आप नहीं, देखिए ऐसे आपने ये कोविड में भी सोचना, जी, बिल्कुल ऐसे कि आपका ये सोचना कि आप लड़की हैं या आप वुमेन हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई भी बिल्कुल ऐसा सही। काम नहीं है जो लड़की नहीं कर सकती। ठीक है, बिल्कुल कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक मैरिड वुमेन नहीं कर सकती। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी हम्म, हैं, और वो ऐसे ऐसे बिल्कुल काम कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि यार इनके पास इतना टाइम कैसे हो जाता निकल रहा है। तो बिल्कुल। और वो सिंपल सी बात है, एक मदर भी टाइम को मैनेज कर रही है, एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो चल रही है। जो वो टाइम मैनेज कर सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और मैरिड लाइफ और बच्चों के साथ लाइफ ज्यादा टफ हो सकती है। एज अ बिजनेस वूमेन मैं ये नहीं कहती कि जी मेरी लाइफ ज्यादा टफ है, उनकी नहीं है। सबके लिए इक्वल है और सब कर सकते हैं। बिल्कुल, वो अपने ये आप को नहीं 10 है सालों कि में हम कहाँ देखती हैं? 10 सालों में मैं कहाँ देखती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं सिर्फ अपने आप को ना देखूं, जो मेरे साथ हैं उनकी भी ग्रोथ हो। तो इंशाल्लाह ऐसे बिल्कुल। मैं 10 साल बाद अगर आपको नजर आऊं तो मैं एक टीम में नजर आऊं, एक ग्रुप में नजर आऊं कि हाँ भाई फातिमा ने ये किया है। फातिमा इतने लोगों की ग्रोथ कर चुकी है और इतने लोग कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये इतनी खूबसूरत बात है कि आप खुद सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहते, आप अपने बिल्कुल, मैं सराउंडिंग अपने साथ में सबको सबको बिल्कुल। कामयाब करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त आपकी सोच है। थैंक यू सो मच फातिमा, आप हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये पॉजिटिविटी फैलाती रहे, इसी तरह लोगों को मोटिवेट और इंकरेज करती रहे, और ऐसा प्लेटफॉर्म, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपका प्लेटफॉर्म मजीद ग्रो करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा उठाएं। इंशाल्लाह। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच। थैंक अल्लाह यू। हाफिज। Allah Hafiz. Now we have Miss Aisha Noor with us. Aisha Noor is the founder of Chick Pumpy. Chick Pumpy is a Pakistani Kusa shoes handcrafted, handmade brand. It represents Pakistan's diverse geographical culture and their individual taste made available to everyone. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum Aisha. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आपकी जरा प्रोडक्ट रेंज बताऊंगी ऑडियंस को, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो। आपको सुनने से पहले काफी यूनिक किस्म के प्रोडक्ट हैं आपके। इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपसे हम इसके बारे में मजीद पूछते हैं। जी जरूर। जी जी, ये इनके बहुत जबरदस्त। मुझे साथ साथ आयशा थोड़ा एक्सप्लेन भी करती जाएं, ये किस तरह से हैं, ये स्टैम्प फॉर्म में हैं या किस तरह से हैंडमेड है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती जाएं। जो दो खुस्से हैं, जो सिल्वर है और गोल्डन है, वो कॉइन खुस्सास हैं। बेसिकली मैंने पहले प्लेन खुस्से को लिया, मोस्टली स्किन कलर्स में होते हैं। तो उसके मैंने उनको बेस पेंट किया है पहले ब्लैक दोनों को, और उसके बाद कॉइन्स मिलते हैं। तो मतलब ये मैंने बाजार से खरीदे हैं, उसके बाद मैंने उन्हें डेकोरेट कर दिया। ये गोल्डन एंड सिल्वर कॉइन खुस्सा हम इन्हें कहते हैं। और बाकी जो दोनों है वो अगेन पेंटेड खुस्सास है, हैंड पेंटेड खुस्सास है। वेरी हमारे नाइस।
हमारे पास बहुत आर्टिस्ट जबरदस्त। हर एक हिस्से को पेंट करते हैं। ठीक है, ये जो आपका ये बहुत जबरदस्त है, ये जो हाथ वाला है ये भी बहुत खूबसूरत, और ये खास तौर पर जो अजरक स्टाइल है ये भी आपका ना, आपको बहुत खूबसूरत है ये भी। अच्छा, ये भी एक बहुत यूनिक ना प्लेन कॉम्बिनेशन, वेरी नाइस। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपकी कलेक्शन है। मजीद इसके बारे में भी हम आपसे पूछते हैं ताकि हम थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को ये बता सकें आपकी जो प्रोडक्ट लाइन के बारे में। ये अगेन चेन हिस्सा है, इसमें मैंने ब्लैक बेस पेंट करके हिस्से पे उसके ऊपर हमने चेन जो है वो लगाई हुई है। ये हैंड स्टिच चेन है और ये बहुत ड्यूरेबल है। अच्छा, अपने बैग पे भी ना उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से ना, इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत है। हमें खुद से तो मिलते हैं पर इस तरह बड़ा नीट सा काम, बहुत खूबसूरत है ये कलेक्शन आपकी। और चेन ये के भी, साथ अगर आप इसको थोड़ा बाजार सा से बताएं, ये जो पिंक वन है ये क्या चीज है? ये बेसिकली नियॉन पिंक इस पे कलर है। उसके ऊपर मैंने मतलब इस पे कह दें कि एक डिजाइन बनाया हुआ है। मेरे अच्छा, डिजाइन में वो वेरिएबल होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट में ले लेती हूँ, कुछ जो है वो फ्लावर्स ले लेती हूँ, कुछ डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट जगह से कलेक्ट करती हूँ और फिर उनको जो है वो अपने आर्टिस्ट को देती हूँ, आगे से वो उन्हें पेंट कर देते हैं। वेरी नाइस, और बहुत खूबसूरत आपकी जो है ना वो कलेक्शन है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपकी प्रोडक्ट लाइन के बारे में। आप हमें बताएं कि आपने आपने इसको कैसे स्टार्ट किया, और इसमें आपके साथ कौन है, या आप इसमें अकेली फाउंडर है, किस तरीके से ना ये स्टार्ट हुआ और कब हुआ? अच्छा, ये किया था क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इट वाज एन इनिशिएटिव फ्रॉम माय साइड टू गेट इंडिपेंडेंट। मुझे बेसिकली जो प्रॉब्लम नज़र आई कि आप अब किसी भी कंट्री में चले जाएं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ द कल्चर, लेकिन पाकिस्तान में हम ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके ज़्यादा फख्र महसूस करते हैं ना। हम लोग लाइक जीन्स पहन लेंगे और हम लोग हम टॉप्स पहन लेंगे एंड वी फील कूल एंड मॉडर्न। तो आई थॉट व्हाई नॉट टेक पाकिस्तानी कल्चर and modernize it, and yet, I took the culture, I took the khusas that represent Pakistani culture, and then I modernized them according to the demands, ताकि हमारा एक तो पाकिस्तानी कल्चर प्रमोट हो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। और क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ मुझे इंडिपेंडेंट होना था, तो इसमें जो है मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेंटोर्स बहुत अच्छे मिले। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो मुझे यूनिवर्सिटी से भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। हमारा यूएमटी में एक सेंटिन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया। मेरी अपनी बहन ने, भाइयों ने बहुत ज़्यादा गाइड किया, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव देयर ओन स्टार्टअप्स। तो मुझे ऐसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जहाँ पे भी कुछ मुश्किल लगा या कुछ भी मुझे लगा कि ये कैसे करना है, जहाँ पे भी स्टक हुई तो देयर वाज ऑलवेज हेल्प अवेलेबल। तो आई थिंक मतलब मुझे बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली का, मेरी इंस्टीट्यूशन का रोल है। बिल्कुल, और जब आप काम करते हैं तो आप अपनी फैमिली की सपोर्ट के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव ना, ये तो बिल्कुल ये बहुत हकीकत है। तो आपकी जो इनिशियल, आपने इसको कब स्टार्ट किया, ये चिक पम्पी कब स्टार्ट हुआ था? अच्छा, यूनिवर्सिटी की जब मैं सेकेंड ईयर में थी मैंने स्टार्ट किया था। इट वाज बैक इन 2017। तो इट्स बीन 3 इयर्स आई एम वर्किंग ऑन इट। लेकिन अभी जो है वो मैं इसे ज़्यादा फोकस्ड होकर कर रही हूँ। पहले जो है वो यूनिवर्सिटी के कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, तो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आई वाज फुली फोकस्ड ऑन इट। सो आई हैव हायर्ड 3 आर्टिस्ट इवन, and I'm sharing co-working space with my brother, and I'm doing my best. And I think at this level I'm shipping 30-40 orders a day, which at this stage is a lot for me. वेरी नाइस, माशाल्लाह, और वो भी स्पेशली कोविड की। अच्छा, आपकी जो स्टोर की ये डिजिटल प्रेजेंस है या इसकी फिजिकल प्रेजेंस भी है? अभी हम लोगों की जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस है, लेकिन हमारे कुछ आर्टिकल्स एवेना मॉल ऑफ डिफेंस में अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारी हाइपर स्टार और मेट्रो से भी बात चल रही है, तो हमारे आर्टिकल्स सून वहाँ पे भी डिस्प्ले होंगे। मतलब हमारा टारगेट है कि हम मॉल्स में अपने आर्टिकल्स को डिस्प्ले करें, ताकि हम एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश हों। तो अभी आप, क्योंकि आपने बताया है कि आप अभी पढ़ रही थी, तो अब आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, आप किस तरीके से इसको मैनेज कर रही हैं विद स्टडीज, और अब खत्म हो चुकी है, फुल टाइम मैनेज कर रही हैं?
नहीं, एक्चुअली मैं मेरा आई वाज इन सेकंड लास्ट सेमेस्टर व्हेन कोविड हिट, सो अभी मेरा एक सेमेस्टर रहता है। एक्चुअली मैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, तो मुझे इट वाज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू गिव माय फुल अटेंशन। तो आपको अभी टाइम मिल गया। बाकी है, बट आई थिंक आई विल मैनेज बिकॉज आई वांट टू टेक इट एट अ नेक्स्ट, आई वांट टू टेक दिस बिजनेस टू अ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल। बहुत खूबसूरत, क्योंकि आप आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में हमारा जो ट्रक आर्ट है वो पाकिस्तान के कल्चर के सामने से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर इस तरह के आपके जो शूज हैं, ये जो खुसा की जो प्रोडक्ट लाइन है, ये बहुत ज्यादा इंशाल्लाह आगे जा सकती है। हाउ मेनी टीम मेंबर्स यू हैव राइट नाउ, फुल टाइम और पार्ट टाइम? Initially, we are 6 total team members, in which there are 3 artists, and then me and other 2 members. And my siblings supported other than that. So, but I have only 6 employees currently. आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं? जैसे अभी कोविड ने हिट किया, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, तो आपने कुछ लोगों को फायर किया या उनको अपने साथ ही रखा, तो उनको कैसे मोटिवेट किया इस सारे पूरे क्राइसिस में? अच्छा, actually as I've told, COVID was a blessing in disguise. Okay, because of COVID, people were stuck in their home. They were in lockdown, so their trend was more towards online shopping. So my orders were drastic. My sales drastically increased in this period. So when my 3 artists are not enough to make daily demands of the customers. But I think COVID was a blessing in disguise. क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों ने अपनी लोगों का वे ऑफ शॉपिंग चेंज हो रहा है। लोग कहते हैं क्या बाहर जाके लेना है, बंदा खुद ही ऑर्डर कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ यू मैनेज प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि जाहिर है आपके ऑर्डर्स ज्यादा थे, तो आपने इस कोविड में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे मैनेज किया? शॉप्स बंद थी, लोग आ नहीं पा रहे थे, तो आपको चीजें चाहिए होंगी, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? अच्छा, ये बेसिकली बहुत मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल खास तौर पर साइजेस का बहुत इशू होता है, और कस्टमर्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारे पास साइजेस नहीं है, और बहुत ज़्यादा इस तरह के इशूज हमने फेस किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत हेल्पिंग और सपोर्टिंग लोग हैं कि सम हाउ वो चीज़ें मैनेज हो गई हैं किसी ना किसी तरह से। डिमांड लीजिए, हमारा एक मतलब बहुत ही पुराना जानने वाला है, जो मतलब इस चीज़ों में खुद से डील करता है, तो ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मेक श्योर किया कि मुझे खुद से टाइम पे मिले। लेकिन फिर भी ऑर्डर्स काफ़ी डिले हुए हैं, फिर हम कस्टमर जो डिले हो जाते हैं, फिर हम कस्टमर से बाद में अपोलोजाइज कर रहे होते हैं कॉल करके। लेकिन सब चीज़ें बहुत टफ थी, क्योंकि खासतौर पर लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और शालनी वगैरह सब कुछ बंद था, तो हमारा थोड़ा बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें खुली और चीज़ें बेहतर हुई, तो तब से अल्लाह का शुक्र है कि सेल्स ऑनलाइन जो सारा कुछ ऑर्डर किया जाता है, उसका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी कल्चर ना, जो ऑर्डर करते हैं वो डिलीवर नहीं होता। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी होगी, तो आपके कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स होता है जब वो चीज को ऑनलाइन देखते हैं और फिर जब उनको रिसीव होती है? अच्छा, उनका बेसिकली मतलब 99% जो है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम के रिव्यूज को भी देखते हैं, तो पीपल आर लविंग अवर प्रोडक्ट्स। मतलब एक ऑर्डर करता है, उसके बाद जो ना नेक्स्ट उनका ऑर्डर 5-6 खुशों का होता है। मतलब फर्स्ट वो ट्राई बेस पे लेते हैं, देन उसके बाद वो पूरी फैमिलीज के लिए कि हमें बहुत पसंद आए हैं। इसके अलावा हमें मतलब मुझे इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स का पता नहीं था कितना अमेजिंग रिस्पॉन्स आएगा। अब तो लोग हमें इवन मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें डिज़ाइन सेंड कर रहे होते हैं कि हमें प्लीज़ खुद सा कस्टमाइज करवाना है, हमारी मेहंदी है, हमारी ढोलकी है, हमारे मायूं है, तो प्लीज़ हमें खुद सा खुद कस्टमाइज करके दें। अच्छा, ट्रस्ट का आपने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, दैट्स ट्रू। और कस्टमर काफ़ी जो है वो इश्यूज भी होते हैं, लेकिन हमने जो है मेक श्योर किया कि हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी हो। इसके अलावा कस्टमर्स का करने के लिए हमने अपने पेज पे, इंस्टा पेज पे रिव्यूज डाले हैं, ताकि हमारे रिव्यूज देख के उन्हें अंदाजा हो हमारी क्वालिटी कैसी है, हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट कैसा है। तो उससे वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाते हैं, और इनकेस अगर उन्हें कोई इशू होता है तो हम उन्हें एक्सचेंज कर देते हैं। तो 7 डेज हमारी एक्सचेंज पॉलिसी है, तो इसमें वो एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उन्हें एज सच कभी भी हमें कोई कंप्लेन नहीं आई। बिल्कुल। तो आप इतने अरसे से इसको मैनेज कर रही हैं, तो आपको कभी इस तरह से शिकायत भी आई और आपने चीजों को इम्प्रूव किया, ऐसा भी कभी कभी आपके साथ हुआ है? ऐसा होता है, और फिर हम उस पर वर्क करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पहले जो थे, हम रेक्सिन यूज़ करते थे, रेक्सिन फुस्सा यूज़ करते थे, लेकिन कुछ लोगों को वो कंफर्टेबल नहीं लगता था, तो फिर हम लेदर फुस्सा पे शिफ्ट हो गए।
तो जैसे जैसे कस्टमर्स हमें जो जो एडवाइसेस देते हैं, जो जो मतलब कस्टमर्स की हम सुनते हैं, अगर फॉर बात है, एग्जांपल, इसी तरीके सॉरी, से आप अपने प्रोडक्ट, मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को मजीद इम्प्रूव करते जाते हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आयशा आपके? मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं और अपनी प्रोडक्ट से आपको बड़ी मोहब्बत है। तो जिनको अपनी प्रोडक्ट से मोहब्बत होती है वो बहुत उसको आगे तक लेके जाते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट करना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करना, अपने बिग स्केल पे अपनी प्रोडक्शन करूँ और उन्हें इम्पोर्ट करूँ, अमेजोन पे सेल करूँ, ईबे पे सेल करूँ, बाकी जो है उन स्टोर्स पे सेल करूँ, और अपने जो अपना स्टोर है उसे लोकल अपने पाकिस्तान तक ना रखूँ, बल्कि अपनी ही इंटरनेशनल शिपमेंट्स को भी डील करूँ। बहुत जबरदस्त आपके प्लान्स हैं। आपको बहुत सारी हमारी फीमेल्स आज देख रही होंगी, ऐसी स्टूडेंट्स भी देख रही होंगी जो आपकी तरह अपने फाइनल ये सेमेस्टर में होंगी और उनको लग रहा होगा कि पढ़ाई के अलावा हमसे कुछ और नहीं हो सकता। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? और उन फीमेल्स को जो जब अपनी पढ़ाई खत्म करती है, उन स्टूडेंट्स को, और उनको अगर जॉब नहीं मिलती तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय सरेंडर करने के, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने इन योरसेल्फ, अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो आप पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा। तो अगर आपने कहीं पे भी लाइफ में जाना है तो सबसे पहले आप खुद पे बिलीव करो। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी चीज करो परसिस्ट होके करो। परसिस्टेंस इज द की। अगर आप परसिस्ट रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। फिर अगर आप स्लो एंड स्टेडी भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। और तो जो जिन लोग जॉब नहीं मिलते, तो मुझे लगता है कि फ्रीलांसिंग मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी है, आप कहीं से भी स्टार्ट करें, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, आप अपना घर बैठ के कुछ भी, अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छी हैं आपको स्टार्ट करते हैं, तो आपको जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि जॉब कल्चर तो लॉन्ग टर्म में शायद ना रहे, क्योंकि अपने स्टार्टअप्स पे हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोकल लोगों को भी रोजगार हमसे मिल सके, और हमारा अपना बिल्कुल। भी हमारे जो मुल्क की जो इस वक्त इकोनॉमी है उसको सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बिजनेसेस करें, और जब अपने बिजनेस होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो ये बहुत खूबसूरत आपका मैसेज है, बहुत अच्छा लगा। और गुड लक आपके अपने प्लान्स के साथ। इंशाल्लाह हम अपना नवंबर दिसंबर में अपना ई मॉल लॉन्च करेंगे जो नेशनली भी और इंटरनेशनली दोनों मार्केट्स को केटर करेगा। तो होपफुली हम आपकी प्रोडक्ट लाइन को इंशाल्लाह आप अपनी उस पे ईमॉल पे प्लेस करेंगे। अच्छा काम करती रहे, इसी तरह मोटिवेट करती रहे। बहुत अच्छा लगा आयशा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर मच। थैंक ज्वाइनिंग। यू। थैंक यू। सो वी हैव नाउ मिस कुलराना विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ज्यादा मुझे इंतजार था आपका, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी आपसे बातें करनी थी, और आपसे बात करके फोन पे तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी एनर्जी है आपकी आवाज में कि जब हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। तो मुझे बताएं, आपका जो ये एमरल्ड फ्रेग्रेंस है, इसके पीछे स्टोरी क्या है? आपने इसको कैसे बिल्ड किया और अब कितने सालों से आप इसको लेकर चल रही हैं? इसको इनिशियली तो मैंने यूके के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। सिर्फ ऐसा फन यूज किया था, सारा दिन माफिया वार गेम खेलती थी, फारिग थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आप बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के आप मेरे साथ क्यों नहीं काम करती। तो पाकिस्तान में तो ये कोई इस वक्त ऑनलाइन का कुछ था ही नहीं इतना ज्यादा। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि ऑनलाइन यूके में ही सेल करना शुरू कर दिया, ईबे और अमेजोन के थ्रू। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब पाकिस्तान में हम छोटी सी मतलब थोड़ा सा सामान कोई आ जाता था तो ले आते थे, तो फिर पाकिस्तान में सेल करने की कोशिश की। इनिशियली बहुत हर्डल्स आई कि लोग समझते थे कि शायद फेक है, शाहलमी का सामान है, मतलब इस तरह करके ना। और जो भी शुरू शुरू में उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था ऑनलाइन शॉपिंग का, कैश ऑन डिलीवरी नहीं पता थी, ट्रस्ट इशू। कब की बात है ये? 2012। अच्छा, 2012, 8 years बैक। माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, 8 years कैरी ऑन। बैक। हाँ जी। तो फिर हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं आती थी और लोग ट्रस्ट नहीं करते थे उस वक्त। सिर्फ इसका नाम एमरल्ड फ्रेग्रेंस इसलिए रखा कि उस वक्त सिर्फ हमारा प्लान था कि सिर्फ हम लग्जरी ब्रांड्स के परफ्यूम बेचेंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन बाद में ये हुआ कि वो परफ्यूम बहुत एक्सपेंसिव होते थे, 15-20 हजार रुपए से शुरू होते थे कॉस्ट में, और फिर इतना ज्यादा वो मतलब नीश मार्केटिंग बहुत बहुत ज्यादा वो ना एक स्पेसिफाई मार्केट थी हमारे लिए। तो फिर हमने फिर मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड है बल्कि, उन्हीं की वजह से मतलब ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ है असल में।
उनसे मैंने फिर कांटेक्ट किया, उन लोगों ने कहा ठीक है मैं आपको भेज देती हूँ सारा सामान। उन्होंने यूके से भेजना शुरू किया और हमारी शिपमेंट आई, इट वाज डिजास्टर। सारा सामान खुला हुआ, कुछ गुमा हुआ, कुछ ये हुआ। हम परेशान हो गए कि अब ये क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोगों ने खैर हिम्मत की, उसको किसी ना किसी तरीके से, वो कॉस्ट भी नहीं करनी आती थी, ना सेल करनी आती थी। खैर जैसे जैसे आप चलते जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारे आपके हेल्पिंग हैंड आपके लिए आते जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए साइमा है जो यहाँ पे अभी है हमारे लास्ट में वही है। हाँ जी, तो उन्होंने मेरी ना लोकल मार्केट के लिए ना उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प आउट मुझे उन्होंने किया। कैश ऑन डिलीवरी का सिखाया, मुझे एनवेलप नहीं मिलते थे, उन्हें मुझे वो प्रोवाइड किए कि ऐसे करते हैं, पैकिंग यूं करते हैं। मतलब शी वाज मतलब लाइक एंजल फॉर मी। वेरी नाइस। और इस तरह के जो आपके एंजल्स होते हैं ना, वो आपको भूलते नहीं है पूरी जिंदगी। और वो जो मेरी दोस्त हैं अक्सा, जो है वो यूके में होती हैं, वो उन्होंने भी मतलब कह लें कि पूरा इतने साल तक सपोर्ट किया कि अब सारा सामान खरीदना, उसको भेजना पाकिस्तान, पैक करना, ये एक हैसल था सारा सोचना। बहुत। फिर हाँ, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करनी आती थी, तो वो भी साइमा ने मुझे सिखाई थी कि कैसे एडवर्टाइज करते हैं। आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 2012 में, जब आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, तो आपके पास आपकी सोर्स क्या थी? मेरी अपनी सेविंग्स थी बस। सिर्फ पर्सनल सेविंग की बेस पर आपने किया इसको? ठीक है, तो अभी राइट नाउ, क्योंकि इट्स बीन 12 इयर्स, सॉरी 8 इयर्स, आपके पास कितने टीम मेंबर्स हैं? इतने ज्यादा नहीं है, होम बेस्ड ही है ज्यादातर। ठीक है, तो यूके में है, एक कनाडा में होती है जिनसे कनाडा का सामान आता है। ठीक है, और एक मैं हूँ, और मेरे साथ एक पैकिंग का लड़का है, और एक मेरी बहन है जो फोटोग्राफी कर देती है मेरे लिए। अच्छा, तो आपने अभी ये, क्योंकि आपका ऑनलाइन सिस्टम है ना? हाँ जी, ऑनलाइन है, तो वो इसलिए मुझे इतनी ज्यादा टीम की जरूरत भी नहीं थी। और वैसे भी मैं खुद शॉपोहोलिक हूँ, तो मैं फारिग औकात में सिर्फ शॉपिंग करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती। जब मैं स्ट्रेस होती तो भी शॉपिंग करती हूँ, खुश होती हूँ तभी शॉपिंग करती हूँ। बहुत उतार चढ़ाव आपका 8 सालों में आया होगा, आपने कैसे उसको मैनेज किया? क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो थोड़ा घबरा जाती हैं जब बिजनेस में लॉस आता है या कुछ भी होता है ऊपर नीचे। जैसे कि अभी आपने बताया कि जब आपकी पहली शिपमेंट आई तो सब कुछ खुला हुआ था, तो आपने उस स्ट्रेस को कैसे ओवरकम किया? पहले तो चुप करके सारा सामान बिखरा हुआ देखती रही उसको कि ये क्या करना है, लेकिन फिर अब कुछ ना कुछ तो करना था, तो फिर उसको अब वो फिर अब एक्चुअली मैं पहले एचआर में काम करती थी मुख्तलिफ कंपनीज में ना। एचआर में मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब की हुई है। फिर उसके बाद मैंने जब उसको छोड़ा तो फुल मतलब लोगों ने मुझे बोला कि क्या तुम दुकानदार बन रही हो, क्या चीज कर रही हो, लेकिन मैं जो मुझे नजर आ रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये फन में शुरू हुआ था ये सारा काम बेसिकली, और बस उसको आदी हो गई मैं इसकी, यूज्ड टू हो गई इसको। तो आपके अभी कोविड जो आया है उसने किस तरह से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट किया है? क्योंकि ऑनलाइन तो ये चीजें इतनी इम्पैक्ट नहीं हुई, पर आपको डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट लाइन आपके पास आई, किस तरह से आपको इम्पैक्ट किया है कोविड ने? मेरे पास ये होता है, लकीली ये हुआ था कि क्रिसमस के जो स्टॉक था ना वो आ गया हुआ था मेरे पास। क्रिसमस सेल का जो स्टॉक होता है, दिसंबर का, हाँ दिसंबर का, वो मेरे पास आ चुका हुआ था पहले ही, ये लॉकडाउन से पहले ही। और मेरी आदत ये है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान लेती हूँ, ताकि क्योंकि उसको आने में 2.5-3 महीने लगते हैं पाकिस्तान पहुंचने में ना, सी कार्गो के जरिए जिस सामान जब आता है। तो मैंने इत्तेफाक से मतलब लकीली मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली थी, मैंने सारी की सारा मतलब खरीद लिया था जो भी था। अब वो आता गया और मैंने संभालती गई। वो सारे स्टॉक ने ना मेरी 5 महीने पूरे कवर अप कर लिए। हाँ, अब मेरे पास स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन क्योंकि सिलसिला दोबारा शुरू हो गया शिपमेंट का, तो हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया हुआ है। हाँ जी, आप तो फिर उन कम खुश नसीबों में हैं जिनको कोविड ने इतना इम्पैक्ट नहीं किया, अदरवाइज तो लोग आउट ऑफ बिजनेस। आपके पास तो प्रोडक्ट थी और आप आराम से, आप पूरा टाइम, आपको बड़ा टाइम मिल गया होगा ना। तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि इस तरह की चीजों में आप डील करती हैं जो पर्सनल यूज के लिए होती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये सब, जब लोग ऑर्डर करते हैं, बाहर करते हैं या इधर पाकिस्तान में करते हैं, और जब उनको पहुंचते हैं तो उनका क्या फीडबैक होता है? वो दोबारा आपसे लेते हैं? वो किस तरीके से आपको चल रहा है? क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो ऑनलाइन मार्केट है उसकी कोई इतनी अच्छी रेपो नहीं है, लोग जो ऑर्डर करते हैं आता कुछ और है। मेरे साथ भी हो चुका बहुत दफा। तो वो किस तरीके से आपने इस चीज को कोप किया?
पहली बात, हमारी रिटर्निंग कस्टमर बहुत ज्यादा है और उनका रेगुलर जो असल में हमारी सक्सेस का राज यही था कि जो पुराने लोग थे वो बहुत, उन्होंने अभी इवन जो 2013 में ऑर्डर करते थे वो आज भी करते हैं, यानी इतने पुराने। और वो उनको पता है कि इसके पास स्टॉक होता है। आपका कस्टमर भी उस वक्त नहीं जाता है जब उसको पता होता है कि इसके पास स्टॉक है। तो मेरी आदत है कि मैं स्टॉक ज्यादा रखती हूँ। एक मतलब एक पोटली इतनी लाती, मतलब बाकी काफी सारे 100-200 किलो के डब्बे आते हैं बाकायदा। और हम लोग मेरा ये हुआ था कि ऑनलाइन का क्या इशू है, हम ट्रस्ट लोग हाँ फेक पेजेस बनाते हैं। इवन मुझे भी कॉलेज, मैंने आपको ऑर्डर दिया था, मैंने कहा मेरे पास तो कोई आपको ऑर्डर नहीं आया। नहीं, तो उस पर लिखा था शॉपर से, शिपर या ब्रांड से। मेरे एक पेज का नाम ब्रांड्स ऑनलाइन भी है, ठीक है। तो वो उसको मैसेज आ जाता था कि उसको मैं इसलिए यूज नहीं करती कि उसके ऊपर अक्सर शिकायतें आ जाती थी कि आपने मुझे ये गलत भेजा। मैंने कहा भाई भेजा किसने, मैंने तो नहीं भेजा। वो अक्सर लोग ऐसे करते हैं। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। यानी हम लोग जो चीज दिखाते हैं, मैं शुरू में हम लोग करते होते थे प्री ऑर्डर्स पे। प्री ऑर्डर का ये होता है कि आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी पसंद की चीज, उसकी साइज की चीज उसको वहां से यूके से खरीद देते थे। और जब पाकिस्तान आती थी 2-3 महीने बाद, औरतें जो होती है ना वो इम्पल्स शॉपर्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। हमें उसी वक्त चीज चाहिए होती है, ठीक। तो वो आते आते उसका मूड खत्म हो जाता था। वो कहती थी अच्छा ये वो ना बिल्कुल क्रेविंग होती है, जैसे किसी चीज की होती है ना, वो शॉपिंग की भी क्रेविंग होती है। क्रेविंग होती है, मतलब हाँ, हम लोग को उसी वक्त वो चीज चाहिए होती है। आप उसको थोड़ी देर बाद उसकी वो हमें वैल्यू खत्म हो जाती है अगर वो बाद में हमें मिलती है तो वो इससे नहीं होता था कि लोग, मतलब उनको उस वक्त महंगी भी लगना शुरू हो जाती थी एंड पे। प्लस ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैग है वो 5,000 का है मिसाल के तौर पे, ठीक है, और वो कस्टम में निकल गया है, या उसको मतलब वो चोरी हो गया है कोरियर में आते हुए, या वो डैमेज हो गया है, तो वो मुझे उसको वो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है ना। तो वो ये बड़ी जिम्मेदारी होती थी, तो मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं शुरू में बिल्कुल भी एडवांस नहीं लेती थी। अब एडवांस नहीं लिया तो एक खातून ने ऑर्डर कर दिया 15-20 हज़ार का, ठीक, बिल्कुल। जब शिपमेंट आई, हाँ जी आपको भेज दूं, किसी ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं देना। किसी ने कहा नहीं वो मेरी ना कोई फलां डेथ होगी तो ये हो गया तो वो हो गया, तो यहाँ मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में ले लूंगी। तो वो उसी तरह चीज, हालांकि हमारी चीज बिक जाती है, आपने नहीं ली कोई और खरीद लेगा, ठीक है। तो लेकिन उस वक्त थोड़ा सा गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर उसके बाद फिर हमने प्री ऑर्डर लेना ही छोड़ दिए। अब हम अपनी मर्जी की शॉपिंग करते हैं, अपनी पसंद से उसको लाते हैं और अपने टाइम पे लाते हैं। और फिर जो डिस्प्ले होता है, जो आप इस वक्त मेरे, अगर आपने पेज को विजिट किया होगा तो उस पर देखेंगे जो चीज है ना वहाँ पे वो है स्टॉक में। आपके पेज की काफी फॉलोइंग है, मैंने देखा है। हाँ जी, 2012 से तो शुरू हुई हूँ। बहुत जबरदस्त। और मुझे ये बताएं कि हमारी, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर की रिटर्न्स रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऑर्डर जब लोग मंगवाते हैं तो वो रिटर्न बहुत होते हैं, लोग फोन नहीं उठाते, लोग लेते नहीं है, रिसीव नहीं करते। तो हाउ डू यू मैनेज, आपका रिटर्न रेट क्या है, और शुरू में क्या था, और उस पर क्या इम्पैक्ट आया विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी भी अब कितना है, जरा ये बताइएगा। शुरू में तो बिल्कुल नहीं था रिटर्न रेट, ठीक है, और कभी 1-2 दफा हुआ है, 1-2 दफा हुआ है, ज्यादा दफा नहीं हुआ। किसी ने ऑर्डर किया है और उसने लेने से इनकार कर दिया, ये हुआ है। और इसका ये हुआ कि फिर हमने उसको पूछा है आराम से कि आपको चाहिए, अगर तो उसने रिस्पॉन्स कर दिया नहीं मैं गलती से घर पे नहीं थी तो ये नहीं था, तो कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा सेंड कर देते हैं, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस आप पे करेंगी। जब वो पे करने पे एग्री हैं तो हम उनको दोबारा भेज देते थे। लेकिन एक और मतलब ये होता है कि कुछ लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते, तो फिर उनको अब उनको ब्लॉक कर दो। उन्होंने जो एड्रेस लिखा होता है उसको आप हाईलाइट कर दो और अपनी लिस्ट में रख लो, ताकि वो किसी भी और तरीके से या किसी और नंबर से आपको करेंगे तो एड्रेस तो वही होगा ना, या नाम तो वही होगा, आपको पता चल जाता है। हाँ, फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि हमने इसको ट्रैक रखा हुआ था कि रिटर्न। अच्छा, एक दिन मेरा कोरियर वाला एक दिन मुझसे पूछता है कि आप यहाँ पे बाकी सबकी रिटर्न आती है, आपकी क्यों रिटर्न नहीं आती? तो मैंने कहा पता नहीं मतलब मुझे नहीं पता रिटर्न। ये आपकी एक्चुअल में सक्सेस है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनका सबसे बड़ा कंप्लेन यही है कि वो रिटर्न रेट बहुत ज्यादा है, और रिटर्न रेट इतना लॉस आपका क्रिएट करता है कि वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, एक दो हो जाते हैं, मतलब उसमें आपको कोई
वो आपको करना पड़ता है बर्दाश्त, इसमें कोई वो है नहीं। हाँ, उसके ऊपर रोना शुरू कर दे, हाय हमें 200 रुपए का लॉस हो गया, डिलीवरी चार्जेस बढ़ गए, पैकिंग, हाँ दुख होता है उस वक्त, लेकिन आपको वो फिर उस बंदे को उसको वहीं पे शट डाउन कर देना है, सिंपल। नहीं, बहुत जबरदस्त। और फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप इसी तरह चीजें इंपोर्ट करके सेल करेंगी या कोई गुलेराना के नाम से भी कोई हमें कॉस्मेटिक लाइन नजर आएगी इंशाल्लाह? अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं गुलेराना का एक ब्रांड लॉन्च करो, लेकिन मैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं कॉस्मेटिक्स नहीं करूंगी। मेरा प्लान है कि मैं अंडरगारमेंट्स का करूंगी। बहुत जबरदस्त, वो अपने नाम से, क्योंकि आप जब अपने इधर लोकल प्रोडक्शन करवाएंगी तो उसका बहुत नहीं इम्पैक्ट आएगा। नहीं, वो ब्रांड्स हो गए, जैसे जैसे हमारा विक्टोरिया सीक्रेट्स या रेहाना ने किया लॉन्च अपना सेविज एक्स करके ना, मतलब उस स्टैंडर्ड टाइप का, मतलब मुझे वो चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको फंड्स भी चाहिए। वो बहुत बड़ी एक ड्रीम है, वो पता नहीं कब पूरा होगा, मतलब ये एक है। नहीं, when there is a will there is a way। जब आपने सोच लिया है तो फिर आप मंजिल तक पहुंच जाएंगी। हाँ, ये तो है। आज 8 तक साल ये का सफर 8 साल का सफर तो आप वैसे कर चुकी हैं। हाँ जी। तो अभी इस अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च करने के अलावा आप अब इधर एम्बुल फ्रेग्रेंस को कहाँ देखती हैं? आने वाले 5 सालों में इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस भी देखती हैं? किधर इसको देखती हैं? इसकी क्या सक्सेस पहले मैंने देखती हैं? सोचा था इसकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए, लेकिन जब ये कोविड आया तो उस वक्त मेरा प्लान टोटली चेंज मैंने कर दिया। पहले मैं बहुत डेस्परेट थी कि मेरी दुकान होनी चाहिए, उसमें मैं सारा कुछ सेट करूंगी तो ये होगा वो होगा। मेरे ओवरहेड बढ़ जाएंगे, मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। यहाँ मैं घर बैठे सब कुछ कर सकती हूँ और मुझे कोई इशू भी नहीं है। और एक सिर्फ ये अपने कमरे को मैंने एक स्टोर बनाया हुआ है, वहाँ पे सारा मेरा स्टॉक रखा हुआ है, सारा मेंटेन है, सारी उसकी प्राइसेस, मतलब मुझे, और सारा ये है कि मैं अपनी फैमिली को भी साथ इन्वॉल्व रखती हूँ ताकि वो भी इसके साथ इन टच रहे कि ये सामान आया है, ये इसकी ये प्राइस है, मतलब ताकि अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे पास मेरे सक्सेसर जो है ना वो इसको रन कर सके। आप क्यों ऑल नहीं है? अल्लाह मियाँ आपको बिल्कुल लंबी जिंदगी दें। अभी तो आप यंग हैं, आप बिल्कुल हैं, और आप इसको अपने नाम से लॉन्च करें और बहुत अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दें। थैंक अच्छा। यू सो मच। लेकिन अब असल में ये है कि मैं, क्योंकि मेरी एक आईटी कंपनी भी हम लोगों ने भी रिसेंटली स्टार्ट की है ना, ठीक है, उसके अच्छा। बारे में हम आप लोगों को बता रही थी। तो वो एक्चुअली वो मेरी अब पावर्स उसको चाहिए। ये सेटल डाउन है, ये ब्रांड सेटल डाउन है, तो अब हाँ, ये ये बन गया हुआ है। तो मुझे इसके लिए, इसमें मुझे परेशानी नहीं है। मेरा एक सिस्टम डिलीवरी का भी रेडी है, डिस्पैचेस, लोकल डिस्पैचेस का भी रेडी है, कैश ऑन डिलीवरी का भी सिस्टम है, सब 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 मैंने वो स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। तो अब बिल्कुल। सब कुछ ऑटोमेटिक है। आप आपको बहुत सारी फीमेल्स देख रही हैं, हमारी प्रमोशंस भी होंगी, वीडियोस भी इसकी प्रमोट होंगी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप 8 सालों से ये कर रही हैं और आज माशाल्लाह इस पोजीशन पे हैं कि आप इस एक सही ब्रांड को स्विच करके वो चल रहा है, उसको आपने ऑटोमेट कर दिया और एक नेक्स्ट चीज पे स्विच कर रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगी? जो आपका दिल करता है वो करें, और थोड़ा सा अलग करें। ये नहीं कि अगर किसी एक बंदे ने, हाँ आप ऑनलाइन काम करना है ना आपने, ज्यादातर मैंने देखा औरतें ज्यादातर कपड़ों का कारोबार ज्यादा करती हैं। जब इतने सारे कपड़े बेचने वाले होंगे तो खरीदेगा कौन? तो वो फिर आपको प्रॉफिट 200-300 रुपया प्रॉफिट ही होगा ना, तो उसके लिए इतनी हैसल करने की क्या जरूरत है आपको? तो थोड़ा सा यूनिक काम करें। थोड़ा सा यूनिक काम करें, फिर उसमें कंसिस्टेंट रहे। हाँ, शुरू में वो सेटल डाउन नहीं होगा, वो शुरू में आपको एंजाइटी अटैक्स आएंगे, आपके पास बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो होगा, आपने अपनी अम्मी से लेकर छोटे बहन भाई तक के पैसे देने होंगे, उधार आपने लेने होंगे, ठीक है। लेकिन उसका जो आउटकम है ना वो बहुत जबरदस्त है कि आप जब आप सेटल डाउन हो जाएंगे ना, फिर आप उसको किसी और के हवाले कर दो और खुद किसी और जगह चले जाओ। आई नो, आई अंडरस्टैंड, लोग कहते हैं हाय नहीं ये हमारा बिजनेस, हमारा बेबी है, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नो, जब ये बड़ा हो गया इसको बेच दो और उसके आप कोई और काम करो। नहीं, बहुत जबरदस्त आपकी ये थिंकिंग है। और जब वो खुद सस्टेनेबल हो जाए, खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तो फिर आप उसके ऊपर ना बैठे रहें, उसको स्विच करें और कहीं और जाकर अपनी एनर्जी लगाएं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और इंशाल्लाह, बल्कि मैं पर्सनली अपने सारे देखने वालों से कहूंगी, और आपका भी और हमारे जितने पहले पैनलिस्ट थे उन सब की जाके पेज को फॉलो करें। और उनकी इतनी अच्छी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये बिल्कुल फेक पेजेस नहीं है, बहुत जबरदस्त ये लोग काम कर रहे हैं। इनके इतने पेज के फॉलोअर्स हैं क्योंकि मैंने पर्सनली जब इनका इंटरव्यू करना था तो इनकी सिलेक्शन के बाद पर्सनली इनको मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च की है। अच्छी प्रोडक्ट है, जो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं।
जरूर इनकी चीजों को ऑर्डर करें। मैं भी कुराना आपको ऑर्डर करूंगी, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? नहीं चले कोई बात नहीं, मैं आपसे फुल प्राइस पे करूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी तरह इन टच रहिएगा। हम इंशाल्लाह अपना ई मॉल लॉन्च करेंगे नवंबर में, और आपकी ये जितनी भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट लाइन है इसको हम अपने ई मॉल पे प्लेस करेंगे। ओह थैंक यू सो मच। आप मुझे डिस्काउंट नहीं देंगी, पर हम शुरू में आपको कॉम्प्लीमेंट्री टाइम देंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, डिस्काउंट का सेल नहीं हम लगाते, हम लोग सेल नहीं लगाते एक्चुअली ना। ये बड़ी फनी बात है कि हम लोग सेल नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? वो 120 रुपए बना के फिर हम उसको 100 रुपए नहीं कर सकते, तो वो ये फिर अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप सेल क्यों नहीं लगाती। फिर पता है क्या होता है, आपके सारे कस्टमर आपके सिर्फ सेल का ही इंतजार करते हैं कि कब सेल लगेगी तो कब हम खरीदेंगे, तो वो मेरा नहीं, लॉस बहुत है। अच्छी, ये बहुत कॉमन हो चुका है, सारे सेल की लाइन में ही लगे हुए हैं और आप पूरा साल आप प्रोडक्ट की वो ही खत्म हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे होता है कि यार मैं ये प्रोडक्ट जाके इतने में क्यों खरीदूं, ये कुछ अरसे में तो सेल में आ जाएगा। हाँ हम सेल नहीं लगाते इसलिए हमारे कस्टमर हमारा इंतजार नहीं करते, तो फिर जो है वो निकल गया तो बस निकल गया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गुड लक, और इसी तरह इसी एनर्जी के साथ ज्यादा से ज्यादा चीजों पे काम करती रहें और लोगों को मोटिवेट करती रहें, और अच्छी अच्छी चीजें जो है ना, नए नए आइडियाज, काफी यूनिक आइडियाज पे काम कर रही हैं आप, करती रहें। तो इंशाल्लाह फिर कुछ सालों बाद आपका इंटरव्यू करूंगी मैं, तो फिर मैं देखूंगी आप इंशाल्लाह कहाँ पहुंची हैं। श्योर थिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक अस, यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। So now we have Miss Dr. Voss with us. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? Dr. Voss is the founder of Herbal Harris. It deals in homemade herbal products with natural ingredients. Product line includes skincare, soap, hair care, lotion, shampoo, herbal base, all skincare products. Welcome to the show, Dr. Voss. कैसी हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट लाइन दिखाऊंगी ताकि थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए, क्योंकि ये बहुत जो है ना आजकल एक ऐसी चीज है जो बड़ी इन है, ठीक है जी। इनकी प्रोडक्ट लाइन में हैंडमेड हर्बल सोप्स हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, हर्बल क्रीम्स हैं, हर्बल मास्क है, हर्बल ऑयल्स हैं, हर्बल शैम्पू है। हम आगे थोड़ा सा आपको ये सब कुछ हैंडमेड बनाती हैं विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। आप देख लें कि इनके ये जो सोप बहुत खूबसूरत आपकी ना ये पैकेजिंग है, और ये जो बहुत खूबसूरत है। ये सोप वैरायटीज है, इसमें ऑरेंज सोप है और ये ऑरेंज जूस के साथ ना इनका एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसमें इनका ये एक और सोप है, इसमें इन्होंने चारकोल का पाउडर ऐड किया हुआ। ये कितनी खूबसूरत चीज लग रही है, और लग ही नहीं रही ये सोप है, कुछ और लग रहा है। अच्छा, इधर इन्होंने ये एलोवेरा सोप्स हैं, इन्होंने एलोवेरा में भी ये। अच्छा, ये आपको एक्ने के लिए बहुत हेल्प आउट करेंगे। आपकी स्किन क्लिंजर, एज ए क्लिंजर आप इसको यूज कर सकते हैं। टाइटनिंग स्किन अगर आपकी लूज हो चुकी है, मैं आपके इसमें प्रोडक्ट मार्केटिंग करी डॉक्टर बॉस, जरा लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमारी ऑडियंस को पता चले कि क्या क्या चीजें, और वैरायटी ऑफ सोप्स इसमें ये है। इम्पोर्टेड आप, अच्छा कुछ प्रोडक्ट्स आप इम्पोर्ट भी कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इनके पास ये रोज वाटर है, ये आपका होममेड रोज वाटर है? जी जी, नहीं रोज वाटर जो है वो मैंने कंपनी से किया है, जिनको मैं ठीक है, मतलब जानती हूँ, मुझे पता है कि वो ठीक वो कर रहे हैं, ठीक और है। पैकिंग मैंने दी है। अच्छा, आप कोकोनट सोप डैश, ये अच्छा ये भी बहुत खूबसूरत है ये जी, बहुत डिशेज आप। हैं जो कोकोनट शेल से बनी हुई हैं, ये जो बीच में पड़ी हुई है ना अच्छा, ये वाली फ्लावर्स। ये बहुत खूबसूरत आपने इनकी ना ये जो मैन्युफैक्चर, ये खुद आप घर पे ही कर रही हैं? नहीं ये भी इम्पोर्टेड है। अच्छा, इम्पोर्टेड है, बिल्कुल। हाँ ये लेकिन कहाँ से यहाँ भी इम्पोर्ट कर मैंने रही हैं? ये एक और लेडी हैं, उनसे मैंने लिया था, उन्होंने कोरिया से ये आई थिंक करवाया है। अच्छा, ठीक है, ये बहुत। यहाँ भी मैंने बल्कि कारीगर को दिया हुआ है, लेकिन ये काफी बारीक काम है, तो इसलिए वो लेट हो रहा है। बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ, और मुझे यकीन है कि क्वालिटी भी इनकी बहुत जबरदस्त होगी जी। अब हमें जरा बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर गौस नाजनीन है। जी। मैंने BEMS किया हुआ है, बैचलर्स इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हूँ मैं एज अ नेचुरल डॉक्टर, यानी कि मुझे मैं रजिस्टर्ड हूँ NCT से, नेशनल काउंसिल फॉर तिब से, और MPhil भी मैं कर रही हूँ ईस्टर्न मेडिसिन में। इसके साथ साथ मैं टीचिंग भी करती हूँ,
और ये पिछले यू आर फ्रॉम सालों से जो भावलपुर है ना? बहावलपुर से, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। ठीक है। और ये पिछले कुछ सालों से जो है वो मैं इस थीम को लेके चली। बेसिकली जो मेरा टारगेट है वो है फीमेल्स को, सिंगल मदर्स को एम्पावर करना, ताकि जो है वो जब मनी, बेसिक चीज़ सारी मनी है, जब मनी आ जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाती हैं। सिंगल मदर्स में बेवा हो गई या ये डाइवोर्स्ड हो गई, या वो वुमेन्स, बल्कि ज़्यादा वुमेन्स वही हैं जो कि जिनके मेल्स ना होने के बराबर हैं। और कोशिश भी की है अपने साथ, जिन लोगों को मैं कर सकती थी उनको किया भी है। और उसमें मैंने जो लाइन ली है ना, वो मैंने हर्ब्स की ली है, कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स में फिर हर्ब्स आ जाते हैं, मेडिसिनल हैं, जो कि हमारे पास इस वक्त वेस्ट जा रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की जो है वो सबसे ज़्यादा प्लांट्स हैं, लेकिन ये है कि हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे पुदीना हो गया, हमारे पास नीम बहुत ज़्यादा है, फिर जो है धनिया हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो फीमेल्स जो हैं वो घर में अगर लगाती हैं तो उनको जो है वो बड़ी मार्केट तक लेके जा सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैंने एक फीमेल को देखा कि जो मेहंदी सेल कर रही थी, लेकिन वो सेल कैसे कर रही थी, वो 25 रुपए में दे रही थी जस्ट। और मैंने उसी दिन ही एक और फीमेल को देखा जो कि फेसबुक पे उसका आया हुआ था, वो भी मेहंदी सेल कर रही थी, लेकिन वो एक DHA की या इस्लामाबाद और लाहौर की कम्युनिटी की थी, और वो बहुत बड़े लेवल पे कर रही थी, उसके पास अपॉर्चुनिटीज थी, और उसने उसको बाहर भी इंपोर्ट कर रही थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि फीमेल्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ कि जिसपे वो अपनी हर्ब्स को लेकर अपनी जो है ना इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। तो आप ये कब से आपका ना हर्बल हारिस के नाम से ये आपका वेंचर है, और इसे आपने कब स्टार्ट किया था? जो मतलब प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग और वो है, वो तो मेरी 3 साल से चल रही थी, लेकिन लॉन्चिंग मैंने लास्ट ईयर की थी। ठीक है। तो आपकी जो प्रेजेंस है ये ऑनलाइन है या इसका कोई फिजिकल स्टोर भी है भावलपुर में? नहीं, फिजिकल स्टोर तो नहीं है, घर से ही बना रही हूँ। और लेकिन ये है कि मैं जो बिजनेस मार्केट है उसको ज़्यादा मैं टारगेट करती हूँ, जैसे पार्लर्स वाले हो गए या और कंपनीज हो गई जो अपने टैग के साथ जो है वो सोप्स को जो है वो सेल करते हैं। तो उस तरह से ऑनलाइन भी प्रेजेंस है आपकी? हाँ जी, ऑनलाइन हारिस हर्बल्स के नाम से जो है वो फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। सेल आपकी ऑनलाइन सेल्स चल रही हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि मतलब कितने टीम मेंबर्स हैं आपके पास? ये जो आपकी प्रोडक्शन लाइन है, या आपकी अपनी क्रिएट की भी प्रोडक्शन लाइन है, या आपकी कहीं और प्रोडक्ट चीजें प्रोड्यूस होती हैं, आप वहां से परचेज करती हैं, किस तरह से? नहीं, इसमें कुछ जैसे रॉ मटेरियल वगैरह है वो तो मुझे लेने पड़ते हैं। कुछ जैसे जो प्लांट्स बेस्ड हैं, जैसे नीम वगैरह हो गई, वो तो मुझे मिल जाती है। लेकिन जैसे ऑयल्स लेने हैं या बॉटल्स वगैरह हैं, वो तो मैं लाहौर से लेती हूँ। बाकी मेरा खुद का ही काम होता है या घर वाले असिस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो आपके पास कितने टीम मेंबर्स हैं? हम लोग इसमें सिस्टर्स ही हैं, तो हम सारी सिस्टर्स मिलकर ही कर रही होती हैं। अच्छा, खुद आप लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अभी जो कोविड रिसेंट एक पेंडेमिक आया, इसने आपके वेंचर पे कितना इम्पैक्ट किया? बहुत फर्क पड़ा था यूं, क्योंकि मेरा जो कस्टमर्स थे वो मेरे स्कूल की लोकेलिटी में थे लोग, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, तो उस वाले से कुछ अर्सा तो फिर खामोशी रही। लेकिन फिर जब बिजनेस मार्केट को टारगेट किया तो उसमें फिर कुछ कंपनीज ने जो है वो लिए, तो फिर उन्होंने अच्छा खासा बल्क में लिया, मतलब 200-100 लिया सोप्स। और उस तरह से फिर जो है वो फिर मैंने फिर ज़्यादा फोकस भी फिर ऑनलाइन भी किया, तो वहाँ से भी जैसे कोहाट से, मुजफ्फरगढ़ से, पिंडी से, इस तरह से फिर मुझे ऑर्डर्स मिले, तो वो बैलेंस हो गया ना। वो बैलेंस हो गया, बल्कि अमेरिका के लिए कभी एक ऑर्डर आया था फ्रूट सोप्स का, तो इस तरह से। बल्कि दुबई से किसी ने कांटेक्ट किया था, और अमेरिका में भी टारगेट था कि वहाँ पर वो मेरी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन फिर ये कि कोविड की वजह से वो फिर खामोशी हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में ई वुमेन जो है ना वो एक डिजिटल मॉल को लॉन्च करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको बाहर से ऑर्डर आता है और किसी को 100 सोप चाहिए या 100 शैम्पू चाहिए, तो क्या आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आपको कितना टाइम चाहिए होता है इस चीज को डिलीवर करने के लिए? किस तरीके से आप इस चीज को मैनेज करेंगी?
अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है तो ज़ाहिर फौरी हो जाएगा, लेकिन ये होता है कि ये जो सॉप्स की जो मैंने प्रोसीजर लिया हुआ है, इसको रेस्टिंग टाइम चाहिए होता है मिनिमम भी 1 वीक, तैयारी के लिए भी 3 डेज चाहिए होते हैं उसको प्रिपेयर करने में, उसके बाद फिर कटिंग फेज में आने तक जो है वो उसको 1 वीक सेट होने में लग जाता है। बिल्कुल। तो उसका ये फिर यही होता है कि अभी मुझे जितना मुझे पता होता है कि इतना मेरा नेक्स्ट लोगों ने उठाना है, लेना है, तो मैं उतना पहले से प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब अगर फ्यूचर में इस तरह का हो तो आप अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकती हैं और आपको कुछ टाइम दिया जाए तो आप उसको डिलीवर कर सकती हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं सेटअप बनाने की तैयारी में हूँ कि जिसमें मेरी पूरी एक कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो जिसमें मशीनरीज वगैरह किस तरफ भी जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं अपना एमफिल पहले कंप्लीट कर रही हूँ ना, इसलिए फिर थोड़ा सा डिले हो गया। बिल्कुल, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है, कहाँ देखती हैं हारिस हर्बल को, और आप के आने वाले 5 सालों में अपना कोई फिजिकल स्टोर की प्रेजेंस देखती हैं या इसकी मजीद ऑनलाइन प्रेजेंस देखती हैं? नहीं, मैं फिजिकली इसको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहती हूँ, साथ में ट्रेनिंग सेंटर फॉर फीमेल्स, और जितनी भी हायरिंग होगी उनकी वो सारी फीमेल्स के थ्रू ही करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो आप क्योंकि पढ़ती भी हैं, फैमिली भी मैनेज कर रही होंगी ऑब्वियसली, और काम भी कर रही हैं और एक बड़ी यूनिक प्रोडक्ट लाइन में काम कर रही हैं, तो किस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी जितनी भी फीमेल्स आपको देख रही हैं, क्या मैसेज है उनके लिए? फीमेल्स को जी। जो स्किल्स है ना, स्किल्स जरूर सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। सिर्फ ये जो स्टडी है ना वो इतना काम नहीं आती, खासतौर पे फीमेल्स को। फीमेल्स का यही है, बच्चियां जो है वो बहुत हायर एजुकेशन, बहुत मुश्किल वाली एजुकेशन में अपनी एक जो बहुत अच्छी लाइफ होती है वो गुजार देती हैं, लाइक MBA, मैथ्स और इस तरह के सब्जेक्ट्स लेके, एंड पे फिर शादी हो गई, फिर घर बैठी हैं, वहां पर फिर सिर्फ स्किल्स काम आती हैं। वो जो कहते हैं ना कि हुनर वाला बंदा जो है ना वो भूखा नहीं सोता, तो स्किल्स जरूर सीखें भी और सिखाएं भी। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आपने पढ़ रहे होते हैं और आपको सिर्फ किताबों की नॉलेज होती है, तो किताबों की नॉलेज आपको प्रैक्टिकल जिंदगी में कभी सिर्फ कामयाब नहीं करती, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सीखनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अपनी फील्ड के अंदर पहले भी आपने डिग्री की है और मजीद उसमें ही आप डिग डाउन करके मजीद उसमें रिसर्च कर रही हैं और मजीद पढ़ रही हैं ताकि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन सके। कितना मुश्किल होता है एक फीमेल के लिए अपना अपना बिजनेस चलाना, आपको किसने सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कहाँ से थी और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से थी, क्या हाँ, सोच थी? फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं थी, और मेरी बल्कि इंस्पायरेशन लोग जो मुझसे लेती हैं फीमेल्स, वो इसी बात से ही लेती हैं जो मुझे जानती हैं कि मैंने जीरो से स्टार्ट लिया था। फर्स्ट टाइम भी बल्कि मैंने पेमेंट बाद में दी थी, पहले मैंने बैच अपना कंप्लीट किया, उसी से जो पैसे आए वो मैंने पेमेंट दी, और जो फिर मतलब वो जो साथ साथ इकट्ठे होते गए उसी से दूसरा बैच बनाया, और इस तरह से मैंने रन किया, और अभी भी यही है। इसी वजह से अभी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ, क्योंकि मैं वही पैसा दोबारा री इन्वेस्ट कर देती हूँ बजाय इसके कि इधर उधर से लूँ, तो वो बहुत ही ज़ाहिर कम होता है। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़बरदस्त आपका आइडिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मज़ीद इसमें आपका क्या प्लान है, किस किस्म की और प्रोडक्ट लाइन को ऐड करेंगी, मज़ीद वैरायटी ऐड करेंगी? हाँ जी, इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि रिसर्च बेस्ड चीज़ आए ना, और उसमें हम्म जाहिर सी बात है उसमें कुछ मशीनरीज भी चाहिए होती हैं रिसर्च वर्क के लिए, लैब्स वगैरह का इक्विपमेंट्स, इस तरह के जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आगे करूँगी। एज अ फीमेल काम करते हुए बिल्कुल सिंगल लेडी के तौर पे जब काम किया, तो उसमें सबसे जो पहला प्रॉब्लम आता है वो है कि आपको मार्केट का पता ही नहीं है। जब आप हम्म घर से बाहर निकल रहे हो आपको नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है, और उसमें इतनी ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि जिस शॉप से वो चीज़ मुझे मिली थी ना, मुझे साल हम्म लग गया उससे, जब भी जाके मांगती थी वो कहते थे कि हमारे पास ये नहीं होती है। वो रेफरेंस यूज़ हम्म करने के बाद वो चीज़ वहाँ से मिलती है, और बिल्कुल फिर बिल्कुल आपको ऐसे पता ही है। है और रास्ते हमारे में। यहाँ पर इस तरह की प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं तो बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो आपका प्रोडक्शन लाइन इंप्रूव करने का प्लान है, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है उसको मजीद फ्यूचर में बिल्ड करेंगी? इंशाल्लाह जी, नहीं, बहुत मैंने अच्छा इसको लगा। एक्सपेंड करने हैं, इंशाल्लाह। डिजिटली भी, यानी कि फेसबुक को भी मज़ीद इम्प्रूव करना है, उसके लिए भी लर्निंग जारी है, क्योंकि सब कुछ खुद करना इंशाल्लाह है तो फिर उसमें ज़्यादा फिर लर्निंग करनी पड़ती है, और टाइम फिर लगता इंशाल्लाह है सारी उस स्किल्स खुद पोजीशन में सीखने में। आना चाहती हूँ कि मैं फिर हायरिंग करूँ।
बिल्कुल बिल्कुल जरूर करें हायरिंग, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें इंशाल्लाह। और गुड लक आपको आपके वेंचर के लिए, आपको फ्यूचर प्लान्स के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी प्रोडक्ट लाइन के बारे में जानकर, और खास तौर पे ऐसी प्रोडक्ट लाइन जो कि खवातीन अपने घर में बना रही हैं, ठीक है। हाँ और वो क्योंकि आपकी स्किन के लिए भी नुकसानदेह नहीं होती, और ऐसी चीजों की बहुत ज्यादा हमारे मार्केट में जरूरत है, और बहुत ब्यूटी लाइन में और इस तरह का बहुत ज्यादा एक गैप है जिसको फिल करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर और इसमें ये चीज भी होती है कि ये इकोनॉमी वाइज भी अगर देखा जाए तो ये चीजें अगर फीमेल्स को आती हैं तो अगर वो घर में खुद बनाती हैं तो उनके घर की जो बजट है ना वो भी बहुत कम हो जाता है कि जो बिल्कुल। और शैम्पू इस तरह की ना आपको कि आप खुद बहुत एजुकेटेड हैं, तो आप अपने फेसबुक पेज के थ्रू इस तरह के ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, अब जैसे पर्सनली मैं खुद आपसे सीखना चाहती हूँ कि जैसे मेरे अपने घर में एलोवेरा के प्लांट हैं, तो मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि इसका सोप कैसे बनाया जाए। तो इस तरह की ट्यूटोरियल, और या फिर आपका यूट्यूब चैनल, तो ये भी एक बहुत जबरदस्त एक अपनी मैं ही यही डोमेन में चाहती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें जैसे आपने कहा कि आपके पास एलोवेरा है, यहाँ पर बिल्कुल हमारे यहाँ एलोवेरा घर में बेनतहा लगी हुई है और बहुत पुअर फैमिलीज के घरों में लगी हुई है। नीम बहुत लगा हुआ है, बिल्कुल लेकिन उनको नहीं पता कि नीम के पत्तों में कितना बड़ा फायदा है। तो एक ऐसा बिल्कुल यूनिट हो जहाँ वो चीजें ले जाकर सेल करें तो वो उनके लिए जीरो इन्वेस्टमेंट बनेगी। बिल्कुल। और सेल भी करें और अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि ब्यूटी के लिए जितने नेचुरल प्रोडक्ट अच्छा काम करते हैं, कुछ भी काम नहीं करता। खास तौर पे जब हम मार्केट से लेके आते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं और काफी आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं आपकी स्किन के लिए। पर ये जो एलोवेरा है और आपकी अपने किचन की जो एक्सेसरीज होती हैं, जिनको आप कुछ ना कुछ बनाकर कुछ टेक्निक के थ्रू बहुत जबरदस्त यूज कर सकते हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉज फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर आपके साथ राब्ते में रहेंगे जब आप इसको एक्सपैंड करेंगी, और आपको आपके वेंचर के लिए गुड लक। थैंक यू। नाउ वी हैव our last panelist with us, Saima Razi. Saima Razi deals in an online beauty product, and it's 100% authentic product, UK delivered, and the product line includes let me share. Saima, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपकी अभी जरा अपने ऑडियंस को प्रोडक्ट लाइन दिखाऊंगी ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये आपकी इन्होंने आप एवॉन में आप डील कर रही हैं, विमेन एम्पावरमेंट आपका एजेंडा है। वेरी नाइस। ये क्योंकि आज हमारे कितने भी पैनलिस्ट हैं, किसी पर उनसे बात हुई है कि वो अपने लिए तो काम कर रही है, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को एसोसिएट करना चाह रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट रेंज में आती हैं कॉस्मेटिक्स, बॉडी केयर, परफ्यूम्स, बॉडी केयर, उसमें एसेसरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्लोथिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रेटनर, ड्रायर, कर्लर, ये चीजें होंगी ना? हाँ जी एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, उसमें आपकी ये इसमें ये सब चीजें हैं, ये आप देखिए हमारे ऑडियंस के लिए ये हमने प्रेजेंटेशन यहाँ बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह की प्रोडक्ट लाइन में डील करती है। ठीक है, ये अच्छा ये मेल फीमेल दोनों के लिए है आपकी चीजें? हाँ जी, मेल फीमेल और किड्स रेंज भी है। किड्स रेंज भी है। वेरी नाइस। तो आपका मैंने देखा है अभी गुलर राना ने आपका बड़ा जबरदस्त हमें इंट्रोडक्शन दिया, और वो आपको बहुत ज्यादा एक्नॉलेज कर रही थी कि मैं जितनी भी मुझे जितना हेल्प आउट साइमा ने किया है, क्योंकि आप लोग एक ही फील्ड में हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। आज बहुत सारी हमें फीमेल्स देख रही होंगी जो शायद आपसे इंस्पायर हो और आपसे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि जब आपने सक्सेसफुल होना होता है तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप खुद ही सक्सेसफुल हो जाएं। जब आप सक्सेसफुल लोगों के साथ करते हैं, यही आपकी असल बिल्कुल, मेरे पास अगर कभी भी कोई आता है किसी किस्म की हेल्प के लिए तो मैं जरूर हेल्प करती हूँ। बिल्कुल, उन्होंने बड़ा आपको एक्नॉलेज किया है और कहा है कि आपने उनको बहुत हेल्प आउट किया। अच्छा, आपके पास डाई भी है बहुत जबरदस्त। जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत ये आपके पास। अच्छा, एवॉन के अलावा और ब्रांड्स भी हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल, अभी हम लोग और ब्रांड्स भी इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी। अब हम आपसे बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? किस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? इसे मैंने ऑलमोस्ट 8 इयर्स पहले स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे थे। इवन ये जो कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं था पाकिस्तान में। उस टाइम पे मैंने लाइक 2012 में स्टार्ट किया था। 2012 में स्टार्ट किया था। तो आपकी इनिशियल 12 में, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट क्या 8 थी इयर्स हो आपकी? गए हैं। आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, फ्रेंड्स, फैमिली, किस तरह से आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, वो क्या थी?
इसमें मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी और मैंने बहुत मतलब छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद फिर इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी थी। और सबसे पहले तो मेरी जो फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, फैमिली को चीज़ें बहुत पसंद आई, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मैंने पहले काम शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने जो है वो ऑनलाइन पेज बनाया और फिर मैंने इसे ऑनलाइन स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो ये आपका जो आपका बाहर जो आपने कांटेक्ट किया और आपको यूके से वो किससे आपने ना एक सिस्टम क्रिएट किया, किस तरीके से, किससे कांटेक्ट किया, कंपनी से डायरेक्ट किया? कंपनी से मैंने डायरेक्ट भी कांटेक्ट किया, लेकिन कंपनी ने कहा कि वो लोग डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान नहीं शिप करेंगे, वो यूके के एड्रेस पे शिप करेंगे। तो इसमें मेरे साथ जो है वो और जो है वो खवातीन काम करती हैं जो कि यूके बेस्ड हैं। तो मेरा जो सामान है वो उनके पास आता है और वो फिर मुझे यहाँ पे सेंड करती हैं, वहां से बाय करती हैं चीजें जो मैं उन्हें बताती हूँ। कुछ वेबसाइट ऐसी हैं मैं डायरेक्ट ऑर्डर कर लेती हूँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें स्टोर्स पे जाके बाय करनी होती हैं। तो इस तरह से फिर वो मेरा सारा सामान जो है क्रिएट किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी कितने टीम मेंबर्स हैं? देखिए यूके में मेरे पास 2 लेडीज हैं जो अभी मेरे साथ काम कर रही हैं और वो वहाँ से मेरा सारा सामान वगैरह जो है उसे परचेज करती हैं, उसका सारी पैकिंग वगैरह सॉर्टिंग करके वो मुझे यहाँ पे हर महीने जैसे सप्लाई देती हैं। ठीक है। और यहाँ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में भी यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 फीमेल हैं जो मेरे साथ जो है मेरे ऑनलाइन स्टोर्स को देखती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मेल मेंबर हैं जो हमारे अकाउंट्स को और हमारे कोरियर और ये सारी चीजें इनको हैंडल करते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि ओवर द इयर्स आपको 8 इयर्स में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, आपका बिजनेस बिल्कुल बैठ गया होगा, तो बहुत नीचे चला गया, ऊपर चला गया, वो कैसे आपने ओवरकम किया? मुझे बताएं इस सारे इस स्ट्रेस को, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो स्ट्रेस थोड़ा कम हैंडल कर पाती हैं, खासतौर पर बिजनेस का जो स्ट्रेस होता है, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? नहीं, हम हैंडल कर सकते हैं ये बस जो है ना वो वैसे ही हम लोग सोच लेते हैं कि हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो जब हम करना चाहें तो हम हैंडल कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल आ रही हो। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बात है आपकी, जब हम करना चाहें डिले हो जाती है। एग्जैक्टली, जब आप करना चाहो तो फिर आप कर लेते हो। बिल्कुल। तो किस तरीके से फिर आपकी शिपमेंट्स डिले हुई, आप बता रही थी? हेलो, मैंने कहा किस तरीके से आप बता रही थी? शिपमेंट्स डिले हो जाती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपके कोई ऑर्डर्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी लोगों से कमिटमेंट की होती है, वो आपकी चीजें कस्टम में आगे पीछे हो जाती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें फिर आपने करना होता है मैनेज। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि अभी जो कोविड आया जिसने बहुत बुरी तरह से हर बिजनेस को अफेक्ट किया, उसका इम्पैक्ट आया बिजनेसेस के ऊपर, आपको उसने किस तरीके से इम्पैक्ट किया? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट लाइन आती बाहर से थी और जितनी भी हमारी ट्रेवलिंग है और जितनी भी सब कुछ बंद हो गया, तो आपके पास पहले से स्टॉक था, किस तरीके से? इसमें ये था कि एक तो यहाँ पे डिमांड भी कम हो गई थी, अगर बाहर से सप्लाई बंद हो गई थी तो यहाँ पे डिमांड भी कम हो गई थी। उसमें ये था कि हमारे पास कॉस्मेटिक्स हैं, ऑफिसेज में जाने वाली खवातीन जो है मेरे पास मेजॉरिटी वो ऐसी चीजें बाय करती हैं बहुत ज्यादा। तो ऑफिसेज क्लोज हो गए थे, स्कूल्स क्लोज हो गए थे, तो उसकी वजह से इन चीजों की डिमांड भी थोड़ी कम हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, उस तरह से हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। तो वो तो अभी जब लॉकडाउन ईजी हुआ है उसके बाद दोबारा से चीजें उसी तरह से चलना शुरू हो गई हैं। लेकिन थैंक गॉड अभी वो जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी बाहर से, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हमारी शिपमेंट्स नहीं आई हैं। तो उसमें यही था कि बस फिर जो चीजें अवेलेबल थी वो प्रोवाइड की हैं, और अगर कोई ऐसी चीजें लोगों को चाहिए होती थी कि जो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग डिफरेंट स्टोर से उन्हें ऑप्शंस बताते थे कि ये चीजें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप ऑनलाइन स्टोर रन कर रही हैं, लेकिन तो अभी हमारे बाद जो है वो हमारे साथ हो गई हैं दोबारा। तो हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज ऑर्डर करते हैं, जो चीज उनको नजर आती है सोशल मीडिया के ऊपर, वो डिलीवर नहीं होती। जो चीज उनको नजर आती है, जो चीज सोशल मीडिया पे वो लोग ऑर्डर करते हैं, डिलीवर कुछ और होता है। तो आपके कस्टमर्स का क्या रिस्पांस होता है और आपका क्या रिटर्न रेट होता है? आपको कितने रिटर्न होते हैं? और विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द ईयर आपकी इस रिटर्न रेट में कुछ कम हुआ?
दरमियान में कम हुआ था कुछ मंथ्स में, जब लोगों की जॉब्स वगैरह नहीं थी। मैंने आपको बताया एवॉन जो है ना, एक्चुअली ये काफी पुरानी आप समझ लें कंपनी है, 1886 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो मेरे पास जो ज्यादातर मेरे कस्टमर्स हैं वो ऐसे हैं कि जिनकी मदर्स, जिनकी ग्रैंड मदर्स एवॉन यूज कर रही थी, और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में एवॉन मिल रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक परफ्यूम होने चाहिए, कोई बॉडी केयर, कोई क्रीम होने चाहिए, तो वो लोग वेट कर लेते हैं उस चीज़ का कि जब वो अवेलेबल होगी तो हम उस टाइम पे ले लेंगे। तो आपके 8 इयर्स में आपकी कितनी कस्टमर बेस है, कितने आपके लॉयल कस्टमर्स हैं? कोई नंबर, कोई फिगर कोट करें ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि आपने इतने सालों में इतने लॉयल कस्टमर्स बनाए हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं और एवॉन की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप ये कह लें कि लाइक 40 लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनका रेगुलर सामान जाना होता है, जिन्हें हर महीने कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लाइक अगर वो एक महीने में अपना कॉस्मेटिक्स पूरा कर रहे हैं तो वो लाइक अगले महीने अब मैं हस्बैंड का परफ्यूम मंगवा लेती हूँ, चलने अब मैं अपना परफ्यूम मंगवा लेती हूँ। इस तरह से करके वो इस तरह चलता रहता है। बिल्कुल। तो ये आपको फॉर एग्जांपल अगर इंशाल्लाह हमारा नवंबर दिसंबर में ई मॉल लॉन्च होगा और जितनी भी हमारी पहले लेडीज थी और कल जिनके हमने इंटरव्यूज किए, उनकी प्रोडक्ट लाइन में काफी यूनिक चीजें हैं, ऐसी कोई चीज है जो, तो मुझे बताएं कि आपकी इतनी स्टॉक में इतनी चीजें अवेलेबल होती हैं कि अगर एक टाइम कहीं से बल्क में ऑर्डर आ जाए तो आप उसको कैटर कर लेती हैं? बिल्कुल, मेरे पास बल्क में स्टॉक होता है क्योंकि ये चीजें आनी लाइक बाहर से आनी होती हैं, तो इसलिए इन्हें हमने ऑलरेडी बल्क में रखा होता है और लाइक मतलब हर महीने नई शिपमेंट आती रहती है। ठीक है। तो एवॉन के अलावा और कौन कौन से तो ब्रांड्स अगर में कोई डील कर ऐसा रही हैं? इवेंट वगैरह हो तो उसे भी हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एवॉन के अलावा और कौन कौन से ब्रांड में डील कर रही हैं आप? एवॉन के अलावा जो है लाइक डिफरेंट ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स अगर मुझे लोग कहते हैं वो मैं मंगवा लेती हूँ। इसके अलावा जो है सोप एंड ग्लोरी की प्रोडक्ट्स मंगवा रही हूँ। और अभी सोप जो एंड है ग्लोरी के प्रोडक्ट्स भी लाइक बहुत अच्छे एक हैं। और मैंने अपना जो है, हाँ जी, एक नया स्टोर स्टार्ट किया है सोप एंड ग्लोरी इन पाकिस्तान के नाम से। तो उसको भी हार्डली 3 मंथ्स हुए हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे भी मिल रहा है। इसके अलावा एक अपनी जो है वो वेबसाइट लॉन्च की है ब्रांड्स फ्रॉम यूके के नाम से। तो उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि यूके की और भी जो ब्रांड्स हैं और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, नेक्स्ट से हम लोग प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स उस पर हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने गोले राना से सवाल किया कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, क्या हम आने वाले सालों में गोले राना के नाम से या साइमा के नाम से कोई ब्रांड देखेंगे? गुले राना जो है वो लाइक मुझे इसी तरह से फेसबुक पे मिली थी, वो अपना पेज चला रही थी और मैं अपना पेज चला रही थी, लेकिन हमारा एक ऐसा बॉन्ड बन गया है, अगर कोई चीज मेरे पास नहीं होती है तो मैं सिंपली लोगों को उनके पास भेज देती हूँ कि आप गुल के पास जाएं, उनके पास सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, दैट्स बिल्कुल वेरी ओरिजिनल नाइस। चीजें हैं, तो आप उनसे बाय कर लें। तो बिल्कुल हम लोग मिलके इसके ऊपर काम करते रहते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं वो मैं नहीं मंगवाती, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं कि जो चीजें वेरी हमारे पास नाइस। ऑलरेडी पाकिस्तान में बल्क में पड़ी होती हैं। बहुत खूबसूरत बात यह है कि आप दोनों एज अ कंपेटिटर काम नहीं कर रहे, एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, और ये सबसे खूबसूरत बात है क्योंकि हमारे यहाँ पर ये लगता है एक बहुत कॉमन कल्चर है कि अगर हम, इफ आई एम सक्सेसफुल तो मैंने किसी और से शेयर नहीं करना, और अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो किसी और किसी से। शेयर नहीं। और हमारा ये होता है कि हमारे पास अगर कोई कस्टमर ऐसा आता है कि वो कोई ऐसी चीज मांगता है जो मेरे पास नहीं है या उनके पास नहीं है, तो हम फौरन एक दूसरे को रेफर कर देते हैं कि आप उनके पास चले जाओ, वहां पे अवेलेबल है। बिल्कुल। और अगर इसी तरह का कल्चर हो, और अब अगर, क्योंकि टीम वर्क जो होता है वो कंपेटिटर के दरमियान भी हो ना, तो वो भी एक सक्सेसफुल वेंचर की निशानी होती है आने वाले टाइम में। पर यहाँ हमारे बहुत जबरदस्त आपका ये मैसेज है कि मिलकर काम किया जा सकता है। तो आपके साथ और मिलकर फीमेल और एसोसिएट भी हैं, जैसे आपने गोले राना को बहुत ज्यादा गाइड किया, हेल्प आउट किया, तो इसके अलावा और भी आपके साथ लोग एफिलिएट हैं? हाँ जी बिल्कुल, और भी अगर मेरे पास कोई भी पेज आता है, अभी बल्कि रिसेंटली इसी मंथ में एक और लेडी है जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, तो मेरे पास अगर कोई भी इस तरह से आता है हेल्प के लिए, किसी किस्म की भी कोई हेल्प, लाइक लोग
लोग आपको नहीं बताते हैं। आप किसी से पूछते हो यार कौन सी आप जो है वो कार्गो यूज कर रहे हो, लोग आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। तो मैंने कभी भी किसी को मना ही नहीं किया है, मैं भी कार्गो यूज कर रही हूँ, जितने मर्जी लोग चाहे उसे यूज करें, उसमें उसको हाइड करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसी तरह से जो लोगों को लिंक्स होते हैं, कहाँ पे सस्ती चीजें, कब सेल्स लगेंगी, ये भी मैं लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से जो है वो हम किन वेबसाइट से चीजें उठा सकते हैं, कहाँ पे जो है वो बेटर ऑप्शंस हमें मिल रहे होते हैं यूके में। तो बिल्कुल मेरे पास जो भी कोई आता है मैं उनको हेल्प करती हूँ। बिल्कुल। तो आपकी क्या, साइमा, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कहाँ आप देखती हैं, और मजीद क्या क्या प्रोडक्ट लाइन आपका ऐड करने का प्लान है? अभी जो है वो हम लोग बूट से काफ़ी सारी हम लोगों ने प्रोडक्ट्स जो है वो नई मंगवाई हैं, और एक नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का लाइक अंडरगारमेंट्स हमने मंगवाए हैं बाहर से, जिसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, बहुत सारे लोगों ने मुझे, एक्चुअली मेरे ही कस्टमर्स ने कंप्लेन की कि हमें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, और लाइक मतलब पैसे पूरे ले लेते हैं लेकिन हमें लाइक मतलब चाइना का, थाईलैंड का स्टाफ मिलता है जो उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होता। तो अगर आप हमें यूके से मंगवा दें तो बिल्कुल वो आप समझ लें कि इसी मंथ में मेरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा अंडरगारमेंट्स वाला भी। तो बाहर से हम लोग तो अंडरगारमेंट्स, हमारी जो ई वुमेन की प्रेसिडेंट है आज, वो हमें कुछ मसरूफियत के बाइस ज्वाइन नहीं कर सकी, और उनका यही विजन है, और ई मॉल बनाने का भी हमने जो नवंबर में इस प्लेटफॉर्म से, ई वुमेन के प्लेटफॉर्म से जो ई मॉल को लॉन्च करना है, उसमें हमारा यही प्लान है कि ये जितने भी अमेजिंग प्रोडक्ट हैं हम इनको शुरू में कॉम्प्लीमेंट्री स्पेस दें और अपना एक वर्चुअल ई मॉल शॉप्स एलोकेट करके बनाएं, ताकि एक वन शॉप स्टॉप हो जहाँ हर तरह की चीजें हो। और वो उसका कॉन्सेप्ट ही, उसके पीछे जो सारी फीमेल्स इंशाल्लाह हमारे प्लान में है, मजीद अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लाइन ऐड करती रहें और लोगों को इसी तरह मोटिवेट करती रहें, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि जब कोई आपका कंपैटिटर या जिसने आपसे कभी हेल्प ली हो और आपकी तारीफ करे, तो दिस इज योर रियल सक्सेस। आपकी सक्सेस ये नहीं है कि आपका सैम एवॉन कितना अच्छा अर्न कर रहा है, आपकी सक्सेस ये है किसी ने आपसे हेल्प ली और आपकी वजह से वो सक्सेसफुल है, और वो आपको एक्नॉलेज कर रहा है पब्लिकली। बहुत अच्छी, और वो मुझे खुद भी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो मैं तो एक चीज मानती हूँ कि अगर आप खुद जो है वो फेयर होते हो तो फिर आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मैसेज देंगी आपको, बहुत सारे आज अगर हमारी प्रमोशंस होंगी, हमारी फीमेल्स देख रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी, और किस तरीके से सोसाइटी में अपनी जगह बनानी चाहिए अपनी फैमिली के साथ? आपकी अपनी फैमिली होगी, आपकी पढ़ाई भी होगी, और आपने एक बिजनेस, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस करना मर्दों का काम है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, लाइक मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BS ऑनर्स किया है, और मेरी क्लास में जो था वो लाइक 50+ कैंडिडेट्स जो थे वो फीमेल्स थी, सारी फीमेल्स थी, और हमारी क्लास में मुश्किल से 7-8 बॉयज थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब लड़कियां जो हैं वो हर चीज में लड़कों से आगे होती हैं, तो फिर लाइक मतलब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हम उसे यूटिलाइज क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो बिल्कुल सबको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उतना जरूर करो। अगर आप नहीं जा सकते हैं 9 to 5 अपने घर से बाहर, तो आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, आप कोई लाइक मतलब वीकेंड्स पे कोई सेशंस कर सकते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत तो आप करें ना कंट्रीब्यूट। बिल्कुल। और कोविड के बाद जो चीजें शिफ्ट हुई हैं, एक माइंडसेट सा बन गया है। फॉर एग्जांपल एक जैसे मेरा भी एक माइंडसेट बन गया कि यार घर पे ही ऑर्डर कर लेते हैं। इसी तरह ना ये इम्पैक्ट आएगा, लोगों का ट्रेंड चेंज होगा। तो बहुत जबरदस्त आप काम कर रही हैं और करती रहें, इसी तरह लोगों को मोटिवेट करती रहें। इंशाल्लाह जब हम अपना ई मॉल लॉन्च करेंगे तो आपकी सारी प्रोडक्ट लाइन को उसमें प्लेस करेंगे। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, वो इंशाल्लाह उनकी तरफ से भी सबके लिए यही मैसेज था कि आप अच्छा काम करती रहे, इंशाल्लाह तो हमारे ई मॉल पे आपकी प्लेसमेंट हो। थैंक यू सो मच साइमा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इसी के साथ हमारा ये वेबिनार फिनिश होता है, और इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अमेजिंग लेडीज को देखा, उनके इंटरव्यू सुने, और इनकी पेज को जाके फॉलो करें। और इनकी सबकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत यूनिक है। और क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग में, जो कहते हैं वो डिलीवर नहीं करते, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कहते हैं वही डिलीवर करते हैं। जरूर देखें, जरूर। और थैंक यू। E-woman,
Be woman, hide her pride. Like a magic I'm gonna fly. I will touch the sky.